नमस्कार मित्रों। भारतीय विद्यापीठ और कम्युनिकेशन टुडे मीडिया जर्नल इनके संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जा रही इस वेबिनार श्रृंखला की 229वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रोफेसर आदित्य कांत आज के हमारे मुख्य वक्ता, जिनका विस्तृत परिचय और विषय आदि की जानकारी अभी थोड़ी देर में हम आपको देंगे। लेकिन इसके पहले मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप प्रियंका सिंह, जो भारतीय विद्यापीठ में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में अध्यापन के साथ साथ इंस्टीट्यूट के जनसंपर्क संबंधी कार्यों को सुपरवाइज कर रही हैं, सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। प्रियंका जी ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के नोएडा परिसर से अपनी मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की और अभी पीएचडी के लिए रेडियो पॉडकास्टिंग आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उस पर आप अपनी पीएचडी के लिए पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड है। और टीचिंग में आने से पहले रेडियो इंडस्ट्री के साथ आपका सक्रिय गहरा जुड़ाव रहा है। आरजे प्रियंका के रूप में अपने शोज आप करती रही हैं और हमारी इस पूरी वेबिनार श्रृंखला के संयोजक के रूप में भी आप काम कर रही हैं। मैं प्रियंका जी से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करें। So good afternoon and warm welcome to all of you. Before we begin with our webinar, let's remember Maa Saraswati through this vandana. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि अब क्या है दर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन अब बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। By this, we are pleased to welcome you all in our webinar of Media Webinar Lecture Series. With pride, we announce that the Communication Today, which is a 30-year-old bilingual media quarterly journal considered as the lighthouse of media profession, and Bharatiya Vidyapeeth Institute of Computer Application and Management, which is 60-year-old institutions, have hands joined together to organize this media lecture series on online mode. So the topic today we are going to organize this media lecture series was the New Age Newsroom, Technology, Talent, and Trust. So we are going to discuss about T3 on today's webinar. So we have with us respected dignitaries, faculty members, dear participants, a very warm welcome to all of you. Today, the theme is exploring 3 keywords, that is technology, where we are going to study about from AI and data journalism to mobile reporting, digital tool technology in reshaping and how news is gathered, produced, and as well as delivered. Apart from it, we are going to discuss about the talent, the various aspects of talent. The modern newsroom demands multi-skilled journalists and who can write, shoot, edit, and also engage audience across platform. The third T stands for building trust, which is very important, being credible, being authentic, and to build a trust. In this age of misinformation, building and maintaining audience trust has become more important and critical aspect for media organization. So it is going to explain us how we can build it. And for this, we are honored to have with us eminent speaker, Shri Aditya Kant sir, Professor of Eminence, Department of Journalism and Mass Communication at Central University of Himachal Pradesh, Dharamsala, which is a beautiful place. So sir will bring us vast experience and academic insight into the evolving media landscape. We will look forward to listen to you, sir, and over to you, Banavat, sir. Thank you so much. इसी क्रम में आपसे एक बार फिर अनुरोध, आतिथ्य सत्कार की हमारी परंपरा के निर्वहन के लिए, क्योंकि आभासी मंच पर एक कार्यक्रम, तो हमने विकल्प भी तलाशे आभासी तरीके से ही स्वागत अभिनंदन के। मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर प्रियंका सिंह जी से कि वे ई बुके से आज के हमारे विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आदित्य कांत जी का स्वागत अभिनंदन करें। जी सर।
I hope the e-book is visible on the screen. Through this flower Yes. day, we have the message. इसी ई बुके की तरह हम सब हमेशा खुश रहें, जो इसकी खुशबू है उसे फील करके, महसूस करके अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, इसी क्रिएटिविटी और खुशबू के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें. तो आई हैव द सेम मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, स्पेशली फॉर सर, फॉर द इमिनेंट स्पीकर फॉर टुडे. थैंक यू सो मच सर. बस यही उल्लास का भाव आपके जीवन में सदा बना रहे, और इस उम्मीद के साथ कि जिस प्रकार से पुष्पों में खुशबू निहित होती है और पूरे बगीचे को महकाती है, ऐसी हमारी वेबिनार श्रृंखला भी अपने विचार रूपी सुगंध से पूरे विश्व को, जो हमारी भाषा हमारे प्रतीकों को समझता है, एक इस तरह की वैचारिक चेतना जागृत करने की दिशा में सक्रिय हो सके. छोटा सा प्रयास मीडिया संबंधी विषयों पर विचार मंथन का पिछले 6 वर्षों से आज 229वीं यह हमारी एपिसोड है, और ये सारे डेलिब्रेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं. आज का हमारा विषय जैसा बताया, द न्यू एज न्यूज रूम, टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड ट्रस्ट. न्यू एज न्यूज रूम, तकनीक, प्रतिभा और विश्वास. अपने इस मंच पर कई बार बात हुई है कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार कक्ष, चाहे वो न्यूज़पेपर का है, चाहे वो टेलीविजन का है, चाहे रेडियो का है, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है. एक दौर था, जो पुराने वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें याद आती होगी, या हम जब शिक्षक पढ़ाते थे बच्चों को क्लास में, तब टेलीप्रिंटर के बारे में बताते हैं, किस तरह से टेलीप्रिंटर की आवाज, कागजों का ढेर, रिपोर्टर की डायरी, संपादक की लाल पेंसिल, है ना, या ब्लू पेंसिल, उसके कहते हैं डिक्टेटर ऑफ ब्लू पेंसिल, एडिटर के लिए कहा जाता था उस समय. ये सब चीजें गायब हो गई है. आज वही न्यूज रूम डिजिटल स्क्रीन, डेटा, डैशबोर्ड, मोबाइल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, एआई, न जाने कितनी तरह की गतिविधियों के सूचना के बहुआयामी केंद्र बन गए हैं. ये जिस तरह से सारा ये बदलाव हुआ है, ये तकनीकी मात्र बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो हमारी वर्क कल्चर है पत्रकारिता की, मीडिया की, उसमें एक बदलाव की आहट है. किस तरह की स्किल्स की अब हमको आवश्यकता हो रही है, और किस तरह से हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उनका एक बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जा रहा है. आधुनिक न्यूज रूम्स में समाचारों के संकलन से लेकर उनका संपादन, डिस्ट्रीब्यूशन, निश्चित रूप से बहुत तेजी आ गई है. इसमें एआई ने समाचारों का डाइजेस्ट तैयार करने में, डेटा को एनालाइज करने में, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन करने में, उसका ट्रांसलेशन करने में, इवन जरूरत है तो वो हेडिंग भी आप उससे पूछ सकते हैं, कितने शब्दों में, कितने अक्षरों में आपको वो शीर्षक चाहिए, और दर्शकों की अभिरुचियों को समझने में जहां तक आपकी कल्पनाएं दौड़ती हैं, वहां तक आप इनका सहयोग ले सकते हैं. तो ये जो क्लाउड आधारित तकनीक है, इसने पत्रकारों को किसी भी स्थान से बैठ करके काम करने की आजादी दी है. कोविड में हमने देखा, फिजिकल डिस्टेंस जब मेंटेन करने की बात आ रही थी, तो न्यूज एडिटर्स के घर से ही न्यूज रूम तैयार हो गए थे, और वहां से वो अपना पेज तैयार करके प्रिंटिंग के लिए भेज रहे थे. तो कितना बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं पिछले 3-4-5 साल के अंदर. मोबाइल पत्रकारिता ने, एक स्मार्टफोन में ही कैमरा आ गया है, रिकॉर्डिंग की सुविधा हो गई है, एक तरह से एडिटिंग, उसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं हैं, आप एडिटिंग भी कर सकते हैं. बल्कि आपका जो ये स्मार्टफोन है, वो अपने आप में एक ट्रांसमिशन का आधार बन गया है, एक प्रसारण केंद्र बन गया है. कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है. लेकिन इस तकनीक की उपयोगिता कब है? उपयोगिता तभी है जब इस तकनीक का उपयोग करने वाले पत्रकार प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, साथ ही साथ सेंसिटिविटी भी हो, उनकी, वो संवेदनशील भी हो, और सबसे बड़ी बात, उनका जो विवेक है वो भी जागृत हो. एक दौर था जब हम कहते थे आपकी भाषा बहुत अच्छी है, यदि आप अखबार में काम कर रहे हैं तो अच्छी भाषा से काम चल जाएगा और आपका न्यूज सेंस बढ़िया हो. लेकिन अब तो दुनिया कहीं उससे आगे जंप कर चुकी है, छलांग मार चुकी है. अब आपको डेटा एनालिसिस भी आना चाहिए, फैक्ट्स की जांच करना भी आना चाहिए, मल्टीमीडिया जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी आप पारंगत होने चाहिए, पॉडकास्टिंग, वीडियो एडिटिंग, सर्च इंजन की समझ, एआई टूल्स की समझ, और इसके साथ उसके एथिकल एस्पेक्ट्स, उसके कानूनी और सामाजिक पहलू,
ये भी आपको जानने होंगे। और साथ ही साथ जानने की उत्सुकता, उत्कंठा, जिज्ञासा का भाव, आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकली चीजों को आप रिव्यू कर सकें। और जैसा मैंने शुरू में कहा, वो जो सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता होती है, वो उसकी एक तरह से उसमें अधिक अपेक्षित है। संपादक की जो निर्णय क्षमता है, किस तरह से वो डिसीजन लेता है, तुरंत निर्णय लेना पड़ता है आपको इस भागती तेज दुनिया के अंदर। ये पत्रकारिता की जो आत्मा है वो अभी भी कहीं ना कहीं बची हुई है। नई तकनीक ने निश्चित रूप से समाचारों की गति बढ़ा दी है। गलत सूचनाएं, डीप फेक, कई बार बात हुई अपने इस मंचों पर, किस तरह से इन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन का जाल फैला दिया है। क्योंकि हमारी जो एक भावना है या हमारा जो एक लक्ष्य हो गया है, वो हो गया है सबसे पहले खबर दें। एक समय हम कहा करते थे सबसे सही खबर, नहीं, सबसे सही खबर, ये उद्देश्य हट गया। और सबसे पहले खबर देने की प्रतिस्पर्धा में हम कई बार भ्रामक सूचनाओं के साथ भी समझौता कर लेते हैं। तो सबसे सही खबर देने का जो दायित्व है पत्रकारिता का, मीडिया का, मुझे लगता है उससे हमें अलग नहीं होना है। एआई उपयोगी और सहायक हो सकता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट का जो अनुभव है, उसका जो एक संदर्भों को जिस प्रकार से वो जोड़ता है, एक से एक लिंक को जोड़ता है वो, और फिर उसके जो एथिकल एस्पेक्ट्स है, उसका विकल्प मुझे लगता है एआई शायद नहीं बन पाएगा। और तीसरी बात ट्रस्ट की जो हमने की, विश्वसनीयता की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मीडिया की सबसे बड़ी पूंजी तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता। यदि वही खत्म हो गई तो फिर मीडिया का लाभ क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। यदि हम समाचार की जो सत्यता है उस पर ही विश्वास नहीं करते हैं तो इस तकनीक का क्या लाभ। आपकी इतनी बढ़िया लेआउट और ये सब प्रेजेंटेशन है, वो सब बेमानी है। पहली चीज है उसकी विश्वसनीयता। अक्षरों की साधना तो हमको करनी पड़ेगी। पूरी 2 शताब्दी की लड़ाई आजादी की हमने इन्हीं अक्षरों की साधना करते हुए की है। इसलिए आज भी पत्रकारिता में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जो आपके सोर्स हैं उनकी पुष्टि और अपनी गलतियों को स्वीकार करने और जो आपकी जवाबदेही है, उत्तरदायित्व हैं न्यूज रूम के, उनके भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका अनुसरण अनुकरण हमें करना होगा। अक्सर बात की गई है कि एआई जनरेटेड जो सामग्री है उस पर बाकायदा स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और अब तो आपने पढ़ा होगा भी 2-3 दिन पहले अखबारों के अंदर, अब तो ये टेक्नोलॉजी आ रही है कि एआई से जनरेट की हुई सामग्री में उसका वाटरमार्क आ जाएगा साथ में, और आप कॉपी करके दूसरी जगह उसको पेस्ट करेंगे तब भी वो वाटरमार्क दिखाई देगा। तो जब इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो उसके समाधान भी निकलते हैं। तो आप, एआई आपका सहायक बने, वो आपका बॉस नहीं बने। भविष्य का मुझे व्यक्तिगत लगता है, बाकी तो बात आदित्य जी करेंगे, बहुत लंबा अनुभव आपका पत्रकारिता की दुनिया का, विविध अनुभव, कि आने वाले समय में न्यूज रूम न तो पूरी तरह मशीनों पर निर्भर होंगे और न केवल जो परंपरागत अब तक हमारे जो तौर तरीके थे उन पर निर्भर होंगे। शायद उनका कहीं जो है वो समन्वय जो है वो हम कहीं ना कहीं देखेंगे। तकनीकी दक्षता और मनुष्य का विवेक, इनका संतुलन, समन्वय जो है उसमें होगा। तकनीक उसके सामर्थ्य को बढ़ाएगी, उसकी रचनात्मक ऊर्जा को शायद और अधिक वो पल्लवित पुष्पित करेगी, और उस रचनात्मक ऊर्जा के साथ साथ उसकी जो विश्वसनीयता है वो पत्रकारिता का जो है प्रमुख आधार होगा। तो इन तीनों का जब संतुलन होगा तब पत्रकारिता अपने बेहतर स्वरूप में निखर करके आएगी। आइए विस्तार से हम जानते हैं आदित्य कांत जी के अनुभव। आदित्य जी वर्तमान में केंद्रीय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जब मैं इनके साथ मेरे संबंधों के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है जब जयपुर में शायद आप डीएनए में थे या टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, मोस्ट ऑफ डीएनए में थे, बाद में आपने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया था। तब हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप जुड़े थे। हमारे कॉमन फ्रेंड थे डॉक्टर यश गोयल के माध्यम से। दुर्भाग्य से डॉक्टर यश गोयल अभी कुछ महीने पहले उनका निधन हो गया था, तो उन्होंने मुझे इनसे परिचय कराया था। और उसके बाद तो हमारी पूरी की पूरी जो पारी है वो बहुत लंबी रही, और देश के अलग अलग अंचलों में जहाँ भी इनकी पोस्टिंग रही, जब भी जाना हुआ हमारा मिलना जुलना होता रहा, और वो एक संवाद निरंतर बना हुआ है। तो प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस के रूप में आपकी एंट्री के साथ ही एक तरह से टीचिंग का भी आपका अनुभव। तो प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता और एडिटोरियल जो मैनेजमेंट है, समाचार पत्र के निर्माण की जो बात है, और न्यू मीडिया की जो चेंजेस जिस तरह से आ रहे हैं, उनको आपने बहुत निकटता से देखा, समझा और महसूस किया है।
जो हमारी ट्रेडिशनल प्रिंट जर्नलिज्म है वो किस तरह से एआई टूल्स से जुड़ गई है, उसकी तो पूरी लंबी यात्रा है, क्योंकि आपने लगभग 3 दशक से अधिक का समय पत्रकारिता को दिया है, तो इन सारे बदलावों के आप बहुत ही निकट एक साक्षी रहे हैं। जो आपका 3 दशक का अनुभव है, उसके बाद आपने मार्च 2024 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश ज्वाइन किया। इसके पूर्व टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डीएनए, स्टेट्समैन जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण संपादकीय पदों पर आप कार्य कर चुके हैं। देश के प्रमुख अंचलों में विशेषकर नई दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, जयपुर और शिमला, यहाँ पर आपने कार्य किया है। यहाँ इन अखबारों के, अलग अलग अखबारों के जो न्यूज रूम है उसमें आपने उनको देखा, समझा है। तो ये जो आपका एक व्यापक अनुभव है उसने आपकी एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं इसके बारे में गहरी समझ को पैदा किया है। जो मैंने बात कही थी संवेदनशीलता की, तो एक पत्रकार के साथ यदि संवेदना का तत्व जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि वो अपने कार्यों के अंदर बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो वो एक साहित्यकार की संवेदना, जो एक पत्र, क्योंकि आजादी से पहले तो हमारे यहाँ अधिकांश पत्रकार, साहित्यकार एक ही व्यक्तित्व में समाहित हैं, कितने ही नाम लीजिए आप। तो लेकिन आदित्य कांत जी आधुनिक दौर में पत्रकारिता के साथ साथ एक साहित्यिक रुचि और साहित्यिक बोध जो है आपका, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने जिस पक्ष पर भी लिखा, चाहे वो राजनीति है, चाहे प्रशासन है या समसामयिक विषय है, उनका जिस तरह से तथ्यात्मक विश्लेषण किया है और उसके पीछे जो एक पैनी दृष्टि रही है वो उसकी बहुत महत्वपूर्ण रही है। और जैसा मैंने कहा, चूंकि साहित्यिक प्रतिभा से आप संपन्न हैं, तो आपका एक उपन्यास आया हाई ऑन कसौल, ये एक तरह से अपराध कथा है, रोमांचक अपराध कथा है जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। इसमें युवाओं की जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और हिमालय जो मूल आपका क्षेत्र है, जहां से मुख्य रूप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जॉब के कारण तो आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ा, लेकिन हिमालय क्षेत्र का जो आपका अनुभव है और किस तरह से पर्यावरण का वहां क्षरण हो रहा है, इन गंभीर मुद्दों को आपने इस औपन्यासिक शैली में भी उठाने का प्रयास किया है। और हाल ही में आपकी एक पुस्तक और आई है, घोर्स, हॉरर एंड हिल्स, ये भी आधुनिक हिमाचल परिवेश पर आधारित रहस्य रोमांच से भरपूर कहानियों का एक अद्भुत संग्रह है। और इस पुस्तक का लोकार्पण राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने किया था। तो अब अकादमिक क्षेत्र में आ गए हैं, हमारे साथ ही आप जुड़े हुए हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा, टीचिंग का अनुभव आपका बहुत पुराना है। हमारे विभाग के साथ आप लंबे समय तक जब भी जयपुर में रहे, निरंतर हर बैच में आप आते रहे, कई संगोष्ठियों में आए, सेमिनार्स में आए। हमारे इस वेबिनार सीरीज के साथ भी आपका जुड़ाव है। आज दूसरी या तीसरी बार आपकी उपस्थिति है। तो पत्रकारिता, साहित्य और अकादमिक क्षेत्र के बीच में जो आपने एक सार्थक सेतु का निर्माण किया है पिछले 3-3.5 दशक में, तो आपका अनुभव इस पूरे बदलाव को एक पत्रकार और एक साहित्यकार के रूप में किस तरह से आप देखते हैं, और हमारे साथ चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, शिक्षक जुड़ते हैं, तो उन्हें क्या आप दिशा बोध देना चाहेंगे? मैं आमंत्रित करता हूं भाई आदित्य कांत जी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। आदित्य जी। Thank you so much, Sanjeev Banawa sir, for this wonderful and elaborate डिस्क्रिप्शंस। और आपकी एसोसिएशन से मुझे वो लगभग 15-16 बरस पुराना टाइम याद आ गया। इनफैक्ट मैं अपने टीचिंग का जो क्रेडिट है वो इनिशिएट करने का डेफिनेटली आप ही को दूंगा, और गोयल जी तो आज हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक वो ऐसा टाइम था जब मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ कि टीचिंग में मुझे जाना चाहिए और मुझे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये मेरा, आई थिंक ये मेरा बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि आपके एसोसिएशन में आया, और जब भी आपने बुलाया मेरे लिए बहुत ही अच्छी मोमेंट्स रही है। इनफैक्ट आई हैव ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद यू एंड योर स्टूडेंट्स बिकॉज, और जहां तक एआई, नए मीडिया और उस बारे में आपने जो इलेबोरेट ढंग से अभी बताया, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू लिसन टू। और मेरा तो जहां तक है अभिनय, अभी भी मैं जर्नलिस्ट बाय सोल हूँ, और पढ़ाई में टीचिंग में आया हूँ, और ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंसेस को ही एकेडमिक के रूप में ढालने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट वो एक प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में एंटिसिपेट कर सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें जो नए ट्रेंड्स अभी एमर्ज हो रहे हैं उनके बारे में। और जहाँ तक आपने बात की थी टेलीप्रिंटर के टाइम की, तो मैं शायद जर्नलिस्ट की उस जनरेशन से हूँ जिन्होंने टेलीप्रिंटर और ये टाइपराइटर का आखिरी दौर देखा है। जब मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था तो उस टाइम
टाइप राइटिंग की स्किल सीखना बहुत ही जरूरी हुआ करता था आपको जॉब लेने के लिए। तो वो भी है आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे और इतने इलेबोरेट ढंग से आपने ऑलरेडी बता दिया है। एंड प्रियंका ऑल्सो थैंक यू फॉर योर ई बुक के, आपको बहुत सारे इमोजीज थैंक यू के। और अब मैं जहां तक कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इनफैक्ट मेरे लिए अभी तक ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है। और मैं, जैसे आप बनावत सर ने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, एक पर्सपेक्टिव किस तरह से जर्नलिज्म थ्योरेटिकली भी और किस तरह से प्रैक्टिकली अभी आगे बढ़ रहा है और इवॉल्व हो रहा है। तो मैं बजाय वो कि मैं रिपीट करूं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शुरू करूंगा। मुझे लगता है उससे मैं आपको न्यूज रूम किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, पहले क्या था, और टेक्नोलॉजी किस तरह से अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस जो एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं, जो या अभी भी एग्जिस्टिंग जर्नलिस्ट हैं, उन सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, तो शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मेरी बात भी कन्वे हो पाएगी और वो रेपिटेशन भी शायद ऐसा ना लगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 15 अगस्त की हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच से। मतलब मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मैं शायद आपको वही कुछ कॉन्सेप्ट्स बता सकूं जिस तरह से हम बात करते हैं। तो अगर मैं याद करूं 30 साल पुराना वक्त, जब जर्नलिस्ट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को रिपोर्ट किया करते थे या उनके बारे में एक न्यूज रिपोर्ट न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स भी तब तक आना शुरू हो गए थे, तो वो किस तरह से होती थी, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने इसको देखा होगा वो किस तरह से होती है, और उसको रिपोर्ट करने का प्रोसेस किस तरह से इवॉल्व हुआ है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देन वी कैन टेक अप अदर चैलेंजेस जो कि हमारे न्यूज रूम में है। तो अगर आज, खैर मैं बात करूं, मैं इमेजिन करूं 30 साल पहले की कि मुझे ये असाइनमेंट मिलती है, मैं रिपोर्टर हूं, तो उस टाइम जैसे बनावत सर ने भी कहा कि उस टाइम टेलीप्रिंटर या एजेंसीज के थ्रू न्यूज रिपोर्ट, या तो आप टीवी के थ्रू लाइव डिस्क्रिप्शन में देख के, जो भी रिपोर्टर होते थे वो नोट्स लिया हो करते थे, और वो कुछ शॉर्ट हैंड्स भी जाना करते थे। नहीं तो एक छोटे छोटे हमारे जैसे ऑडियो कैसेट्स प्लेयर्स होते थे या कुछ होते थे जो स्पॉट पे जा रहे हैं, वो काफी लोग कहीं पे सुन के या टीवी के थ्रू उसको रिकॉर्ड किया करते थे। और रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से की पॉइंट्स हम नोट किया करते थे कि इस स्पीच की हाइलाइट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और वो प्रोसेस इतना कम्बरसम और लंबा होता था कि अगर इस बार तो मोदी जी की स्पीच थोड़ी सी कम रही है, इट वाज आई थिंक अबाउट 75 मिनट्स की थी, जो अभी तक की उनकी शॉर्टेस्ट स्पीच है पिछले 12-13 साल में। और बल्कि मेरे ख्याल से इनकी लंबी शायद 1.5 घंटे की भी स्पीच हुई है। तो अगर उसको लिखने के लिए एक रिपोर्टर का काम होता था, तो वो शायद उसको बार बार रिपीट करके सुने, उसके पॉइंट्स बनाए, और नॉर्मली हाथ से लिखने के बाद वो टाइप करके उसको हाईलाइट करके डेस्क को देगा, और डेस्क उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट डिसाइफर करके उसके हेडलाइन करके करेगा। तो मेरे ख्याल से आराम से 2 से ढाई घंटे कम, अगर वो सारे को करते, तो वो स्पीच को डिसाइफर करके डिस्प्ले करने का टाइम में इतना वक्त कम से कम लग जाता। और उसमें पॉसिबिलिटी है कि वो 3 या 4 लोग उसमें इन्वॉल्व होने के बाद, जो हम ह्यूमन इंटरवेंशन की बात आज की तारीख में करते हैं, उस टाइम टेक्नोलॉजी का सिर्फ बेयर मिनिमम पार्ट यही होता है उसमें कि हमने टीवी पे या तो वो स्पीच सुनी, या ऑडियो के थ्रू हमने उसको रिकॉर्ड करके रखा है, हम उसको रिवाइंड करके जहां पे मिस कर रहे हैं सुन रहे हैं और बार बार सुन रहे हैं। वो सारे का सारा प्रोसेस 3 या 4 घंटे का लग जाता है। लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जैसा मैं देखता भी हूँ और मैं आजकल टच में भी हूँ, जो मेरे अभी कलीग्स हैं कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया में है और न्यूज़पेपर्स में है, तो आजकल उसका आज के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा सिंपल है कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की स्पीच उनकी चल रही है, वो लाइव टेलीकास्ट हो रही है, आपने इमीडिएटली अगर उसको, आपके एडिटर से आपको इंस्ट्रक्शंस है कि इसके की टेकअवेज पे हमें एक स्टोरी करनी है। हालांकि नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर तो नहीं आते हैं, बट हमारे डिजिटल एडिशंस हैं, सब हैं उनके लिए। तो सिंपल आपको ये आना बहुत जरूरी है कि आप कौन कौन से की प्रॉम्प्ट्स देके उस स्पीच के जो की टेकअवेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से स्टोरी बना के आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता ये 10 मिनट भी लेगा। 10 मिनट भी मैं उसके बाद बोल रहा हूँ, जब आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे कि ऐसा एक्चुअली ये चीजें उसमें हुई है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि इससे हमें ये, एक तो ये पता चलता है कि हमारी जो स्पीड है न्यूज को क्रिएट करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, और आगे तक ऑडियंस तक पहुंचाने के बाद एनालाइज करने की, वो स्पीड मल्टीपल टाइम्स बढ़ चुकी है व्हाट इट यूज्ड टू बी अबाउट 30 years ago।
और उसके अलावा जो एक मैनुअल लेबर इन्वॉल्व हुआ करती थी किसी भी काम में, वो मैनुअल लेबर बहुत ही कम हो गई है। ऑलमोस्ट इट हैज बीन रिड्यूस टू आई थिंक बहुत ही ज्यादा 1/4 भी रह गई है उसकी। तो इसके आपने की टेकअवेज लेने के बाद हम यहाँ तक एक टाइम में मुझे याद है कि दे यूज्ड टू बी लाइब्रेरीज इन द न्यूज़पेपर्स। अगर आप दिल्ली में या बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में जाओगे, एक फ्लोर डिवोटेड होता था कि वहां पे लाइब्रेरीज होंगी जहां पे कैटेगराइज करके न्यूज स्टोरीज को रखा जाता था। उन न्यूज स्टोरीज को रखने के बाद साथ में उनकी कैटेगरी के, तो अगर उसको एनालिसिस आपने करना है तो उस एनालिसिस के लिए आपके लिए जरूरी होता था कि आप वहां लाइब्रेरियन से जाके मिलेंगे, उनसे पुरानी स्पीचेस के बारे में पूछेंगे और साथ में उनको देखेंगे कि पिछले सालों में उन्होंने क्या क्या बात कही थी, और उसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू द फाइल्स। बट अभी आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना ये आना चाहिए कि विच आर द न्यू पॉइंट्स विच प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन अबाउट दिस टाइम। तो उसमें क्लियरली 4 या 5 टेक अवेज आ जाएंगे कि यूथ के बारे में बात की है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है, और इजिली आप उसका एनालिसिस बना के यू कैन इजिली मेक ए रिपोर्ट आउट ऑफ इट। एंड इवन यू कैन गो टू दैट एक्सटेंट के इसमें कौन कौन से पॉइंट मिस हैं। लेकिन जहां जैसा प्रोफेसर बनावत सर ने भी पहली बात की थी कि ये सारी चीजें इफेक्टिवली और क्रेडिबिलिटी के साथ हम तभी कर सकते हैं जब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, और जब वी ऑलवेज हैव समवन हु इज एक्चुअली यूजिंग हिज डिस्कशन एंड जजमेंट टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई कि कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, जैसे हम एल्गोरिदम की बायस की बात करते हैं, या हम बात करते हैं कई बार डीप फेक्स की, या कई बार हेलुसिनेशन होता है उसमें एआई की, उसमें हम बात करते हैं कि हेलुसिनेशन हो रहा है, कई चीजें प्रॉम्प्ट के हिसाब से भी उस तरह से क्लियरली नहीं आ पाती और मिस हो जाती है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी हो जाता है कि जो भी चीजें हमारे पास एआई के थ्रू जनरेट होके या सिलेक्ट होके आ रही हैं, हम उसको क्रॉस चेक और क्रॉस वेरीफाई करें। तो ये प्रोसेस अगर हम बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा, मुझे नहीं लगता इसमें 15 या 20 मिनट से ज्यादा, विद इन 10-15 मिनट्स यू कैन कम आउट विद द एनालिसिस एंड स्पीच, एंड पूरा का पूरा वो डिटेल आपके पास स्टोरी की फॉर्म में, बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में, अल्टरनेटिव्स के साथ आ जाएगी कि आपको कौन सी 4 हेडलाइन में से कौन सी हेडलाइन देनी है, क्या करना है। तो ये कंपैरिजन मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हम आज हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न न्यूज रूम। मॉडर्न न्यूज रूम में किस तरह से हमारे पास टेक्नोलॉजी, जो हमारा पहला एलिमेंट है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके अलावा टैलेंट और ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल आज के तारीख में लेके आ गई है हमारे के पूरे न्यूज रूम में। और बहुत सारा क्रिटिसिज्म एआई को लेके हुआ है, लेकिन आज हम जिस स्टेज पे हैं, हम एआई के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते, दिस इज ए गिवन फैक्ट, और ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और बहुत ज्यादातर जो न्यूज़पेपर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी बहुत पहले से वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे। इंडिया में अब धीरे धीरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैं देखता हूँ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदू है, और सारे न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए अपने एडिटोरियल में, चाहे वो रिपोर्टर्स हैं चाहे डेस्क पे हैं, उनको वो अलाउ भी कर दिए हैं विद सम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि वो किस एक्सटेंट तक यूज होने हैं। बिकॉज ये फैक्ट सबको समझ आ गया है कि एआई के बिना हम कंपटीशन में अब रह ही नहीं सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की कि इसमें किस तरह से इवॉल्व हुआ है। एक टाइम था टाइपराइटर्स का, एक टाइम था टेलीप्रिंटर्स का, उसके बाद टीवी चैनल्स आए, जैसे बनावत सर ने एक एग्जांपल भी दिया था अभी कि न्यूज को लेके आ रहे हैं। एक टाइम क्रेडिबल न्यूज की बात होती थी, एक टाइम एक टाइम वो आया जब हम कहते थे कि सबसे पहले हमने दिखाया, और उसका भुगतान भी करना पड़ रहा है बहुत सारे चैनल्स को, चाहे मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो आज हम देखते हैं कि वो बहुत नीचे चली गई है। तो उसका वन ऑफ द रीजंस, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ टेक्नोलॉजी ही रीजंस है, और भी रीजंस है, बट वन ऑफ द रीजंस ऑब्वियसली ये है कि ग्रेजुअली जो स्पीड है, जो कंपटीशन है पहले देने का, दैट हैज स्टार्टेड टेकिंग ओवर द एक्यूरेसी। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल अभी कुछ महीने पहले, या मेरे ख्याल से पिछले साल याद होगा, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते रहते हैं। बॉलीवुड के फिल्म स्टार थे धर्मेंद्र की न्यूज ब्रेक हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे दैट ही हैज पास्ड अवे, और बहुत ही प्रोमिनेंटली इसको कवर किया गया, और उनकी देखा देखी में 1-2 चैनल्स ने, वेबसाइट्स ने भी न्यूज फ्लैश कर दी, और बाद में वो न्यूज रिट्रैक्ट करनी पड़ी। तो वो एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है, और ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग हुई है जो बहुत ही इनएक्यूरेट थी, और मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का रोल है, और सारे फैक्टर्स हैं, बट डेफिनेटली
एज एन ऑडियंस, अब ये सिर्फ जो एक मीडिया लिटरेसी की बात आती है, तो मीडिया लिटरेसी का रोल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्यादा बढ़ चुका है। बिकॉज वेरीफाई करना न्यूज ये सिर्फ किसी जर्नलिस्ट के लिए नहीं जरूरी हो गया, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा फॉर्म है जो जिसपे आई थिंक हर कोई मोर देन 90% जो लोग हैं वो सब लोग सोशल मीडिया पे हैं और जो न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करता हूँ, नई जनरेशन से भी देखता हूँ, तो अब जो न्यूज कंजम्पशन का मेन सोर्स है उनसे मैं जनरली पूछता हूँ, या आपने भी देखा होगा कि कहाँ से न्यूज, उनको इंटीमेशंस कहाँ से आ रही है। दिस इज मेनली थ्रू सोशल मीडिया एंड दैट टू इंस्टाग्राम के थ्रू वो मेन न्यूज ब्रेक हो रही है। हमारे टाइम में टीवी चैनल्स पे थी या एक टाइम में रेडियो होता था। तो अब अगर इंस्टाग्राम पे कोई न्यूज आ रही है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस चेक या वेरीफाइड न्यूज है। और एक जो उसका मतलब ये भी है कि जो लोग एक पुराने टाइम में 30 इयर्स अगो ये था कि जो ऑडियंस थे या न्यूज के कंज्यूमर थे वो बहुत ही रिलेक्टेंट, या हम कहेंगे कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते थे इन द प्रोसेस ऑफ न्यूज डिसेमिनेशन। जब भी हम बात करते थे कि हम न्यूज कैसे देखते थे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पढ़ते होते थे या टीवी से देख रहे हैं या रेडियो पे सुन रहे हैं, सो देयर वाज हार्डली एनी वे कि हम उसको बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि कहीं चाय पीने गए हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, किसी गैदरिंग में हैं, तो कहीं आप बैठे हैं, देन यू आर शेयरिंग न्यूज। लेकिन आज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको इतना, और खासकर अनफॉर्चुनेटली व्हेनेवर इट कम्स टू फेक न्यूज, वो जल्दी से ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल भी तेज करती है और स्प्रेड भी बहुत ज्यादा करती है और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। इसका हमने एग्जाम्पल अभी हमने देखा है कि जैसे अभी ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये कॉकरोच जनता पार्टी का, बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी आई और उसमें एक फेक, मुझे अभी उसका याद आ रहा है, एक फेक रील ट्रेवल करना शुरू हो गई पीयूष गोयल जी के नाम से, जो हमारे मिनिस्टर हैं, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया था और उसको बिना वेरीफाई किए, बिकॉज अज्यूम कर लिया गया कि ये न्यूज शायद होगी। एक दो जो हमारे फेमस ब्लॉगर्स हैं, मेरे ख्याल से बॉम्बे की कोई ब्लॉग, उसने उनको क्रिटिसाइज करते हुए उस न्यूज को भी स्प्रेड कर दिया। बट लेटर इट टर्न्ड आउट कि वो कंप्लीटली वो जो पूरी जो वीडियो बनी हुई थी उनकी, वो फेक वीडियो थी। बट बाय दैट टाइम उसको रिमूव किया गया, क्लैरिफिकेशन आ गई, वो ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो चुका हुआ था कि डैमेज काफी एक्सटेंट तक हो चुकी थी, नॉट ओनली फॉर द मिनिस्टर बट ऑल्सो फॉर दोज हु हैड एक्चुअली फॉरवर्डेड दैट पर्टिकुलर न्यूज स्टोरी या जो वायरल जो क्लेम्स थे। तो इससे एक चीज जो बहुत अंडरलाइन होती है, इंपॉर्टेंट हम सबके लिए, वो जरूरी है कि इट्स नो लॉन्गर अबाउट मीडिया पर्संस, कि ये सिर्फ जो लोग न्यूज रूम में हैं या जो लोग जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ मीडिया लिटरेसी उनके लिए जरूरी नहीं रह गई है, बट आई थिंक फॉर एवरी कंज्यूमर जो कि आज एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, वो अपने कमेंट्स भी करते हैं न्यूज पे, वो उसको शेयर भी करते हैं, अपने व्यूज भी देते हैं। तो आई थिंक सबके लिए मीडिया लिटरेसी उस एक्सटेंट तक बहुत जरूरी हो गई है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही है, उनमें इतनी एबिलिटी या इतनी डिस्क्रिप्शन हो कि वो उसको वेरीफाई कर सके और ये अंदाजा लगा सके कि ये न्यूज या डेवलपमेंट एक्चुअली जेन्युइन है या नहीं है। तो कमिंग बैक टू द न्यूज रूम, अब न्यूज रूम में यही सब जो हमने बात की थी कि स्पीड की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक्यूरेसी हैज, इट हैज टेकन ए सीवियर टोल ऑन आवर एक्यूरेसी। जैसे मैंने धर्मेंद्र की बात की, अब ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं और इसमें इनवेरिएबली एक जो कॉमन फैक्टर आना शुरू हुआ था वो ये था कि ज्यादातर रिपोर्टर्स या जो मीडिया पर्संस हैं, दे हैड स्टार्टेड रिलाइंग ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड न्यूज सोर्सेज, जिनको वेरीफाई करने के लिए उनके पास ना तो टाइम था, या कई बार फेक न्यूज को स्प्रेड करने के लिए भी डेलिबरेटली प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे थे, जो कई बार, बहुत ज्यादा बार ये अनइंटेंशनल वे में स्प्रेड आउट हो रहे थे। तो दैट इज वेयर, अब अगर हम बात करें आज के कॉन्टेक्स्ट में, मैं देखता हूं जो कितने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, या मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था, एक दो जगह और देख रहा था, अब जो प्रोफाइल्स हैं न्यूज मीडिया पर्सनल्स की, वो प्रोफाइल्स अब काफी धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि मैं एक किसी यूएस के न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, या रॉयटर्स के कोई मैं आर्टिकल भी पढ़ रहा था, एक नई पोस्ट क्रिएट होनी शुरू हो गई है एआई न्यूज एडिटर्स की, और इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये करनी शुरू कर दिया है, जिनका काम सिर्फ यही चेक करना है कि एआई से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड, ये मान के चला जा रहा है कि एआई की हेल्प ली जा रही है एंड दिस हैज बीन एक्सेप्टेड।
तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज जिसको अभी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली क्रिएट, एक वो बनाना चाह रहे हैं कि एक स्टाइल शीट होती थी हमारे टाइम में, अगर आप लोगों में से कोई मीडिया में भी होंगे, वो होंगे, किसी भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं तो एक आपकी स्टाइल शीट होती है, जैसे मैंने ट्रिब्यून में यहाँ देखा या स्टेट्समैन में मैं गया था, एक इतनी मोटी स्टाइल शीट होती है जिसमें आपको स्टैंडर्ड एक स्टाइल फॉलो करना होता है। जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं वो मिस्टर यूज करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिस्टर नहीं यूज करते हैं, या हाई कोर्ट में एच कैपिटल जाएगा या सी कैपिटल जाएगा या छोटा जाएगा, ये सारी चीजें उसी तरह से यूज होती आई हैं। तो नॉर्मली जैसे हमारी ओरिएंटेशन किसी भी स्टाफर की होगी कहीं पे, उनको ये कहा जाता था कि आप ये स्टाइल शीट पढ़िए। तो अब बिकॉज इंक्रीजिंग यूज हो रहा है हमारे लिए एआई का, तो अभी तक किसी भी ज्यादातर न्यूज़पेपर में जितना मेरे पास अपडेट है, ऐसी कोई डेफिनेटिव स्टाइल शीट या कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड बी यूजिंग एआई या इसको कहाँ यूज करना है, कहाँ पे रुकना है, वो अभी तक इवॉल्व नहीं हो पाई है। बट मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर इन द प्रोसेस, ताकि हम कहीं पे एक एथिकल स्टैंडर्ड को फॉर्म कर सकें और कहीं पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सके। एआई के यूज से सबसे बड़ा इशू यही आता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब ये जो एआई न्यूज एडिटर्स जैसे मैंने बताया जिनकी फॉर्म हो रही है, इनका जो मेन काम इनका सिर्फ ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी इनके एंड पे ही फिक्स होगी। सपोज कोई फेक न्यूज चली जाती है, तो उस टाइम एक टाइम था कि ये नहीं पता होता था कि उसका ऑथेंटिक सोर्स कहाँ है, कहाँ से जनरेट हुई है, तो अकाउंटेबिलिटी किसको दें? ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर्स को कहेंगे। सपोज रिपोर्टर्स हैव टेकन द स्टोरी फ्रॉम द एजेंसीज, जैसे एक होता है एजेंसी स्प्रेड करती है न्यूज़पेपर्स को, तो वो जीरो इन करना मुश्किल होता था। अब जो न्यूज़पेपर्स इवॉल्व हो रहे हैं, जो न्यूज रूम हमारा इवॉल्व हो रहा है, उसमें एआई का ये रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट ढंग से एमर्ज होके आ रहा है। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से स्पीड बहुत इजी हो गई है, जैसे हम देखते हैं वेदर रिपोर्ट्स फाइल होती हैं, या इवन बजट जब आता है, जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का आपको एग्जांपल दिया, इट हैज बिकम वेरी इजी कि आप बजट जैसे पूरा दिन चलता है, तो वहां पे एक टाइम होता था कि 10 या 12 लोग एक ही स्टोरी पे काम करते थे कि बजट में से यूथ के लिए क्या है, फार्मर्स के लिए क्या है, पॉलिटिकल किसी स्टेट के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है, वो अलग अलग रिपोर्टर्स उस पर काम करते हैं। बट नाउ इट हैज बिकम इजी बिकॉज ऑफ एआई। तो अब जो ग्रेजुअली जो चेंज हो रहा है न्यूज रूम में, अब वो है कि स्पेशल ट्रेनर्स को भी हायर किया जा रहा है जस्ट टू ट्रेन द रिपोर्टर एंड इवन द राइटर्स, कि आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट किस तरह से देने हैं ताकि आप मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकें, और किस तरह से हम उसको मिस ना करें। और किस आपने देखा होगा प्रॉम्प्ट्स, बहुत सारे लोग चैट जीपीटी शुरू में यूज करते थे, इवन स्टूडेंट्स आर यूजिंग चैट जीपीटी। तो शुरू में ये इशू आया कि वो, लेकिन उसने लैंग्वेज मोर और लेस इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट कि ये चैट जीपीटी की लैंग्वेज है। हालांकि उसमें आप उसमें क्लैरिफाई भी कर देते हो, उसको डीह्यूमनाइज कर देते हैं, ह्यूमनाइज कर देते हैं, उसको एआई के प्रॉम्प्ट भी हटा देते हैं, बट स्टिल आई थिंक वन कैन फिगर आउट कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में किस तरह से है। और एक एग्जांपल मेरे ख्याल से वो काफी कोटेड एग्जांपल है पाकिस्तान के न्यूज़पेपर का, जिसमें एक एडिटोरियल छपा था, आई थिंक 6 महीने पहले की बात है, और उसमें जैसे एआई में लास्ट में लिखा आता है कि इफ यू वांट आई कैन आल्सो रीराइट इट इन ए डिफरेंट फॉर्म, या इसको मैं अलग तरह से भी यूज कर सकता हूँ। तो वो आई थिंक क्लासेस में भी हम लोग पढ़ाते भी हैं और एग्जाम्पल भी देते हैं कि क्यों ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन डिस्क्रिप्शन अल्टीमेटली जरूरी है, इवन इफ वी आर यूजिंग एआई। तो अपेरेंटली वो पूरा ओवरसाइट हो गया, वो देख नहीं पाया उसको, और वो ऐसा का ऐसा ही छप गया। और ऐसे एग्जांपल और भी कई होते हैं, मैंने और भी न्यूज़पेपर्स, इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी कई बार देखे हैं। तो विच एक्चुअली अफेक्ट्स, जो इसका लास्ट एस्पेक्ट हम जो बात कर रहे हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट के अलावा जिसकी बात हम करते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात ज्यादा होती है मीडिया में, और बार बार ये आता है कि जो इंडियन मीडिया है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा डिप कर गई है। खैर, उसमें सिर्फ एआई का रोल नहीं है, और सारे फैक्टर्स हैं, बट डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी है, जहां तक हम टेक्नोलॉजी के पार्ट पे बात करते हैं, क्योंकि जो स्पीड है और जो कंपटीशन है, और बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया, ये जो फर्स्ट न्यूज स्प्रेड करने की बात आती है, और आई एम श्योर आप लोग फेमिलियर होंगे टर्म एसईओ से। तो अब जो हम ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं हैशटैग की, एक अलग से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है, जैसे डिजिटल मीडिया के स्टूडेंट्स आते हैं,
उनकी जो इनिशियली ट्रेनिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि आप कौन सी टर्म्स यूज करो। क्लिक बेट यूज किए जाते हैं कि आपने देखा होगा फेसबुक पे या इवन कुछ वेबसाइट्स पे भी होता है कि एक हमारा जर्नलिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता था कि आप हेडलाइन में मेन कॉन्टेक्स्ट या स्टोरी या जो जिस्ट है उसको आप कन्वे कर दीजिए। लेकिन क्लिक बेट में आपको नजर आएगा कि वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। एक इन्वर्टेड पिरामिड पढ़ाया जाता था और अब वो है उसको रिवर्स उन्होंने कर दिया है बिल्कुल, कि आपको हेडलाइन में कुछ पता नहीं चलेगा, सिर्फ एक सस्पेंस और क्यूरोसिटी क्रिएट होगी। कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल होगा उसमें होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन सी 10 बातें कही उनकी स्पीच के बारे में। ये नहीं होगा कि उन्होंने कौन सा की पॉइंट हाईलाइट किया, और जानने के लिए आप नीचे देखिए या लिंक पे क्लिक करिए, विच इज प्राइमरली के वो चाहते हैं कि आपको ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकें, ताकि उनके जो एसईओ पे जो उनकी रैंकिंग है या जो रीडर्स की वो स्टोरी की जो किसी भी तरह से जो पोजिशनिंग है वो बेटर हो सके। बट इन द प्रोसेस हो क्या रहा है कि जो जर्नलिज्म के एथिक्स और जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं पे कंप्रोमाइज हो रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अभी तक कोई एक डेफिनेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एडिटोरियल बोर्ड्स हैं, चाहे मैनेजमेंट्स हैं, चाहे और भी कोई लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिकॉज एक जो रेवेन्यू मॉडल अनफॉर्चुनेटली इंडिया में खासकर हमारा ऐसा है कि जिसकी जो एक प्राइम बन के रह गया है, कंपल्शन बन के रह गया है कि वो अभी तक हम कोई ऐसा रेवेन्यू मॉडल ब्रेक नहीं कर पाए हैं जो कि डिपेंडेंट ना हो किसी तरह के एड रेवेन्यू पे। एड रेवेन्यू चाहे वो गवर्नमेंट से है, कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो अल्टीमेटली जो एक पोजिशनिंग का जो कंपटीशन है वो वैसा का वैसा ही स्टैंड कर रहा है। तो अब इसमें हालांकि अगर आपने देखा होगा कि पिछले जितनी जो बड़ी इवेंट्स होती है या इवन हमने प्रोटेस्ट में भी देखा है कि जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा सकता था, हम देख रहे हैं कि उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। मैं बहुत ही इसको थोड़ा सटल वे में कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंस तो क्या, उनको बहुत ही तरह से आई थिंक वो साइडलाइन किया जा रहा है, उनको बिल्कुल ही देखा नहीं जा रहा है। उसका रीजन एक ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी तो है ही, और मुझे लगता है कि बहुत सारे मीडिया हाउसों ने जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है इस बात को समझना शुरू कर दिया है कि अगर हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी या पावरफुल वे में प्रेजेंटेशंस, जैसे हम बात करते हैं, आपने देखा होगा पैकेजिंग पे कुछ, मैं 10 साल पहले मैं न्यूज़पेपर में था, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो एक किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी बड़ी इवेंट होती थी उसकी पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। एंड व्हेन वी से पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब ये होता था कि अगर बजट, एनुअल बजट आ रहा है तो उसको हम किस तरह से हाईलाइट करेंगे कि जो हमारा रीडर्स है उसको पूरी की पूरी शुरू से लेके लास्ट तक न्यूज स्टोरी पढ़े बिना कुछ फिगर्स के थ्रू, कुछ चार्ट्स के थ्रू, स्टेशंस के थ्रू पूरी की पूरी जो हाइलाइट्स हैं वो समझ आ जाए और उसको उस पर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इस बात पे ग्राफिक डिजाइनर से लेके पूरी की पूरी जो टीम होती थी 5 या 6 लोगों की, वो उस पर काम करती थी और 2 या 3 घंटे लगा के पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि हमने किस चीज को हाईलाइट करना है, किसके बुलेट पॉइंट्स देने हैं, किसको कैसे कन्वे करना है। उसके बाद ग्रेजुअली आपने देखा होगा जब से ये कोविड टाइम की, जैसे वनावा सर ने भी बात की, कोविड टाइम में वी विटनेस अ ड्रास्टिक चेंज इन द प्रोसेस ऑफ न्यूज राइटिंग, न्यूज डिसेमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जब कहीं पे जो एक हमारी जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म थी उस पे एक विजिबल इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि थोड़ा बहुत डिटेरिएट तो हो रहा था फॉर वेरियस रीजंस, बट आई थिंक कोविड वाज द टाइम जब हमें समहाउ सर्वाइवल करने के लिए, जैसा बनावत सर ने भी बताया, हम लोग भी एडिशंस जो हैं वो 3 या 4, जैसे कोई न्यूज एडिटर घर में बैठा होगा, मैं अपने घर में बैठा होऊंगा, एक जो डेस्क का इंचार्ज है वो अपने घर में होगा, हम कॉमन वेरियस एप्स के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करके हम पेज डिजाइन किया करते थे और उस पर डिस्कशंस हुआ करती थी थ्रू कॉन्फ्रेंस, जो हम किया करते थे। लेकिन दैट वाज द टाइम व्हेन वी रियलाइज कि रेवेन्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है, और रेवेन्यू को सर्वाइव करने के लिए आई थिंक डिजिटल मीडिया ने कंप्लीटली एक प्रिंट मीडिया की थी वो बैकबोन बुरी तरह से ब्रेक कर दी थी। और ये बहुत सारे जितने जो स्पॉन्सर्स होते हैं या सब लोग थे उनको समझ आना शुरू हुआ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कुड बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट एंड स्पॉन्सरशिप्स। आई थिंक उस टाइम ये एक ग्रेजुअल शिफ्ट होना शुरू हुआ, और जो आज की तारीख में इतना ओपनली हो गया कि हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स या बड़े बड़े जो नाम है चैनल्स के हैं वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडिया या थ्रू यूट्यूब चैनल्स। और जैसे हम बात करते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो एक टाइम में हम
एज ए न्यूज एंकर्स देखा करते थे मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, वो अपने यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू अब एक उसमें आया कि इसमें एक टर्म ऑब्वियसली आप लोगों को होगी, बट वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, बिकॉज गोदी मीडिया टर्म एक बड़ी पॉपुलरली यूज की जाती है, कॉमनली हम लोग बात करते हैं। बट आई थिंक ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, चाहे वो बात रेवेन्यू की है, टेक्नोलॉजी की है, और टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस ऑफ न्यूज डिसेमिनेशन इतना इजी कर दिया है कि आज हर किसी के हाथ में, जिसके हाथ में मोबाइल है या स्मार्टफोन है या वो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो आई थिंक इन सम वे, वो चाहे ट्रेंड है अनट्रेंड है, वो एक तरह का सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है। वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट उसका ये है कि 70 से 80% मैंने पहले कहा था, वो मीडिया लिटरेसी या कि एक्चुअल न्यूज क्या होती है, न्यूज और एक जनरल इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है, या एक प्रोपोगेंडा क्या होता है, एक डेलिबरेट न्यूज, फेक न्यूज क्या होती है। अनफॉर्चुनेटली एक जो कॉमन यूजर है, ऑलमोस्ट 70 to 80% जो यूजर्स हैं, वो अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि वो जो न्यूज है वो क्या उनको डेलिबरेटली दी गई है ताकि वो स्प्रेड करके किसी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे सके, या कोई गलत वो स्प्रेड कर सके, या वो जेन्युइन न्यूज है। तो टेक्नोलॉजी के जहां एक तरफ इतने अच्छे हम न्यूज रूम में देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, अच्छा टाइम बच रहा है, मैनुअल लेबर बन रही है, बट अनफॉर्चुनेटली जो डीप फेक का जो इशू है या फेक न्यूज स्प्रेड होने का इशू है, वो आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इमर्ज होकर आ रहा है, वेदर इन द न्यूज रूम, इन सोशल मीडिया और अमंग द जनरल पब्लिक। तो मुझे लगता है कि जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नॉट ओनली फॉर द जर्नलिस्ट, जो मैंने पहले कहा है, इवन फॉर कॉमन रीडर्स, सबके लिए वो जरूरी है कि हम मीडिया लिटरेसी के बारे में जानें। टेक्नोलॉजी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कि जैसे फेक न्यूज है, जैसे कुछ चीजें बहुत कॉमन है, जैसे हम गूगल रिवर्स इमेज की बात करते हैं कि कोई भी इमेज आपको दिखाई दे रही है, आप उसको सर्च करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। हम देखते हैं कि कई बार आजकल इवन प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज की, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस की, डिग्निटरीज की कोई वीडियो हमें आज की कॉन्टेक्स्ट में सर्कुलेट हो रही होती है, जो हालांकि हो सकता है उन्होंने 20 साल पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो बात की थी, और हमें लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है और आज ही ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट कि उसके बारे में क्या हुआ है। ये सारी चीजें हम एक अलग तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट ऑडियंस के लिए, नॉट ओनली फॉर जर्नलिस्ट एंड अदर्स, कॉमनर्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है फैक्टर्स टेक अवे होना चाहिए, वो ये है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन पे जो हमारे पास दी जा रही है ट्रस्ट ना करें, उसको एटलीस्ट एक या दो जगह से वेरीफाई जरूर करें। चाहे वो ओरिजिनल सोर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें, चाहे वैसे देखें कि उसकी ओरिजिनल वेबसाइट क्या है, वहां जाने की कोशिश करें, उसके बाद ही हम उसको अच्छे से माने, उस पर विश्वास करें और उसको आगे फॉरवर्ड करें। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो न्यू मीडिया या न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत अच्छा एमर्ज होके आ भी रही है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। लेकिन अब जो जर्नलिज्म ने एस्पायर कर रहे हैं अपने करियर ऑप्शंस, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके चैलेंजेस जो हमारे चैलेंजेस से मल्टीफोल्ड चैलेंजेस हैं, हालांकि उनका इम्पैक्ट है वो भी हमारे से ज्यादा मल्टीफोल्ड होगा, बट दे विल हैव टू ट्यून देमसेल्व्स, दे विल हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर मल्टीपल मीडिया। और एक तरह की टेक्निक करने से मुझे लगता है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे टाइम में था, आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है आप रिपोर्टर बन जाओ, जर्नलिस्ट बन गए। आपका इंटरेस्ट क्या है, डेस्क पे इंटरेस्ट है, आप डेस्क पे काम कर लो, ठीक है आप जर्नलिस्ट बन जाओगे। बट आई थिंक आज की तारीख में आपको सिर्फ न्यूज गैदरिंग से लेके जो लास्ट प्रोसेस है, न्यूज राइटिंग, और नॉट ओनली न्यूज राइटिंग, शूटिंग, एडिटिंग, उसकी प्रेजेंटेशन एंड सोशल मीडिया पे उसको डाल के उसको आपने एम्पलीफाई कैसे करना है और उसका इम्पैक्ट कैसे ज्यादा होगा, और ऑडियंस के रिएक्शंस को कैसे असेस करना है ताकि आप उसको एल्गोरिदम में ऐड कर सकें। ये सारे एस्पेक्ट आपको अगर आते हैं तभी आप एक सक्सेसफुल या इवन सर्वाइवल कर सकोगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत फास्ट इवॉल्व हो रही है एंड वी डोंट नो वेयर दिस एआई इज गोइंग टू स्टॉप, और एआई कहां पे जाके किस एक्सटेंट तक न्यूज रूम्स में रहेगी ये भी अभी तक असेस करना हम लोगों के लिए मुश्किल है। बेशक हम कहते हैं कि अभी ये हमारी तरह डिस्कशन यूज नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, बट आई थिंक किसी को भी ये आइडिया नहीं है कि ये जो कहाँ जाके इसकी इंटरफेरेंस किस एक्सटेंट तक जाके रुकेगी। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कि मैं बहुत ज्यादा
इस पे एलेबोरेट करूं? अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं, टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। और चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस तरह से पत्रकारिता की दुनिया में बदलाव आए, एआई ने कैसे काम को आसान किया, लेकिन साथ में किस तरह के खतरे हमारे हो रहे हैं। ये सही है कि जो लोग एआई का उपयोग नहीं करेंगे शायद इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वो विवेक जागृत करना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी भी मैं देख रहा हूँ, पत्रकार भी हैं, मीडिया टीचर्स भी हैं। बहुतों के मन में सवाल उठेंगे, लेकिन इसके पहले की बात करें, वो अपन अक्सर धर्मेंद्र की बात करते हैं, लेकिन आदित्य जी आपको ध्यान होगा, मेरे ख्याल जयप्रकाश नारायण के निधन के समाचार भी गलत चले गए थे और जी, मुझे संसद भी, बहुत छोटा था मैं। हाँ संसद भी स्थगित हो गई थी, हाँ, है ना। इसी तरह से यदि और पीछे ले जाऊं, पता नहीं उस समय आप का बर्थ हुआ था कि नहीं हुआ था, अन्ना दुराई जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के समाचार भी आकाशवाणी ने गलत प्रसारित किए थे और बाद में गलत प्रसारण के लिए माफी मांगी उन्होंने। इसी तरह से खान अब्दुल गफ्फार खान जब अस्पताल में भर्ती थे और राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, यदि मुझे सही याद है सीक्वेंस, तो राजीव जी एयरपोर्ट जा रहे थे और रास्ते में फिर वो उनका हालचाल पूछने के लिए चले गए, तो किसी पत्रकार को लगा कि शायद उनका निधन हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने या संवेदना प्रकट करने के लिए जा रहे हैं, और यह समाचार भी गलत प्रसारित हो गया। तो एआई के दौर से पहले भी इस तरह की खबरें होती थी, लेकिन अब मीडिया का विस्तार इतना हो गया है कि उसका इम्पैक्ट तुरंत आ जाता है। जैसा आपने कहा कि वो धर्मेंद्र की वेबसाइट पे आ गया, वे आ गया, सभी लोगों ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया, श्रद्धांजलि प्रकट कर दी गई। लेकिन अब ये इंसानी दुनिया है और गड़बड़े ये हो जाती है कई बार। यही सतर्कता और विवेक की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होंगे। सौरभ जी भी आ गए, हमें दिख रहे हैं, जो ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी तो इसके पहले कि सवाल जवाब के लिए सत्र अपन शुरू करें, मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा प्रियंका जी से, आज की शाम को यादगार बनाने के लिए एक ई मेमेंटो और ई सर्टिफिकेट वो आदित्य जी को भेंट करें। I hope the E certificate is on the screen. Sir, this yes, I can see it, Priyanka. gratitude and Thank you. respect from our side, the way you have explained us the topic. We do have your e-memento as well. So this is your Thank you so e-memento much. on the screen. Thank you so much, sir. Thank you. चलिए My सत्र pleasure. चर्चा के लिए Thank you. खुला है। कोई भी ऑब्जर्वेशन, कोई टिप्पणी, सवाल जवाब, तो आदित्य जी साथ हैं, क्योंकि जब चर्चा होती है तो विषय और खुल करके सामने आता है। सर, जो टेलीविजन में न्यूज गलत टेलीकास्ट होना ये सुना था, लेकिन आकाशवाणी में भी खबरें गलत जा सकती हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। हाँ, मुझे वेगली याद है सर, बहुत थोड़ा सा याद है, मैं बहुत छोटा था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन उसमें एक जो मैं ऐड करता हूँ कि उस टाइम एक्चुअली ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी और बहुत शर्मिंदा हो जाते थे जो सही बात है। लोग उसके अकाउंटेबल जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। अनफॉर्चुनेटली आजकल थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज लगता है, या वो उसको मैं जो इतने अपोलोजेटिक वैसे नहीं होते हैं। जी मतलब ये एक्सेप्शन नहीं रहा है, उस टाइम शायद एक्सेप्शन होता था। मेरे को ऐसा पता है कि मतलब अगर ऐसा है कि कभी आपसे गलती से टेलीविजन पे न्यूज़पेपर में गलत खबर चली गई, तो दूसरे दिन आपके हाथ में मतलब नौकरी निकाला होगा, जो मैंने सुना था। अब मुझे नहीं पता ये क्या अखबार, ये तो गीता बाइबल होते थे, अखबार में छप गई मतलब सब कुछ ठीक है। तो अभी भी ऐसा ही चल रहा है क्या? अभी भी इस चीज का इतना ही बड़ा सीन है अगर हमने कुछ गलत दे दिया, या बस चल जाएगा काम? नहीं, अभी इतना तो नहीं है, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि एक चीज इसमें हमें आई थिंक एक एस्पेक्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे बनावट सर तो बहुत ही पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, हम बहुत ही बिल्कुल छोटे थे शायद, लेकिन जब हमने होश संभाला और उस टाइम से देखा है, तो मुझे लगता है कि या हम जब नए नए ट्रेनी रिपोर्टर थे, बने थे, तो उस टाइम हमारे सामने जो चैलेंज होते थे या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वर्क प्रेशर था, वो इस तरह से होता था कि हमें न्यूज इकट्ठी करने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती थी, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वी यूज टू गो अराउंड, लोगों को मिल रहे हैं, किसी तरह से इंफॉर्मेशन आ जाए ताकि हम उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर सकें। बट आई थिंक जो पिछले 15-20 सालों में जो चैलेंज हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। अब ये है कि वी हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन
एंड उसमें से ये आइडेंटिफाई करना कि न्यूज वर्दी कौन सी चीज है और वो वेदर जेन्युइन इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो वो चैलेंज उस तरह से कन्वर्ट हो गया है। तो आई थिंक उसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जो ट्रेनिंग है वो ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बिकॉज प्रेशर्स अलग तरह के हो गए हैं। हमारे टाइम में प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था, बाद में एज फार एज डेडलाइन इज कंसर्न, बिकॉज इनिशियली जो न्यूज़पेपर्स आते थे 20-25 साल पहले, जो पुराने जर्नलिस्ट होते थे वो ये होता था कि कोई डेवलपमेंट अगर सुबह 10 बजे हुई है, मुझे याद है इंदिरा गांधी जी का जो असेसिनेशन हुआ था, आई थिंक वो सुबह के टाइम हुआ था, तो जो जर्नलिस्ट थे उनके पास शाम तक का एटलीस्ट 3-4 बजे तक का टाइम था सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके स्टोरी कंपाइल करके भेजने का। आज अगर इस तरह का कोई इंस्टेंस होता है तो एक तो आपको न्यूज फ्लैश भेजना पड़ता है, ट्विटर के लिए ब्रेक करनी पड़ती है, फिर डिजिटल स्टोरी भेजनी पड़ती है डिजिटल एडिशन के लिए। तो उसमें क्या है कि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये एडिटर्स लोग भी समझते हैं कि जो रिपोर्टर है या जो भी न्यूज इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही चीज को 10 जगह से क्रॉस चेक कर सके, जैसा बहुत पहले हुआ करता था। तो एक तो ये वजह भी है कि अब इसको ऐसा ब्लास्फेमी नहीं माना जाता है कि बहुत बड़ा हो गया। ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशंस होती है और पूछा भी जाता है, तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में। When it comes to न्यूज चैनल, कौन से ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप न्यूज वेरीफाई कर सकते हो? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। हाँ, वैसे तो हाँ, हमें ये बोला जा रहा है इसके कि वेरीफाई करें, लेकिन हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं हमें, वो कहाँ से वेरीफाई करें? एक तो मेरे ख्याल से वैसे तो क्या है कि ज्यादातर जितने भी अच्छे एस्टेब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, अगर आपने देखा होगा, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का पता है बिकॉज लास्ट मेरे स्टेंट वहां पे रही है। हम लोग एक फैक्ट चेक चलाया करते थे, वो न्यूज़पेपर में भी आता था और जो वेबसाइट है उसमें भी हम क्या किया करते थे कि जो भी उस दिन की कोई वायरल न्यूज है जो कि फेक है, और नॉर्मली दिन में 2-3 स्टोरीज ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट हो रही होती हैं, जो कि चेक फेक निकलती हैं बाद में। तो उनको एक तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर उनके पास सपोज इंस्टा पे आ रही है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन इंस्टा के थ्रू मेरे ख्याल से न्यूज को ले रही है जैसे हमने देखा है, तो वो एक उसमें बड़ी सिंपल सी चीज ये कर सकते हैं कि वो उसका ओरिजिनल सोर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे मैंने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का एग्जांपल लिया शुरू में, तो प्राइम मिनिस्टर स्पीच हर जगह उसके कंटेक्स्ट आ रहे हैं, बट अगर आपको कोई क्रॉस चेक करना है फैक्ट, जैसे सपोज उन्होंने कहा कि हमने इतने एम्प्लॉयमेंट देने हैं, तो यू शुड गो टू आइदर पीएमओ की साइट पे जाइए या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पे ओरिजिनल स्पीच उनकी डाउनलोड होगी, वो आप चेक कर सकते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज क्या है कि जैसे ऑल्ट न्यूज है या बहुत सारे इंडिया टुडे की भी अपनी साइट्स हैं, या इवन भास्कर ने एक टाइम में शुरू किया था, लेकिन कुछ जगह अनफॉर्चुनेटली एक दो इंस्टेंस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है जिसमें ऐसा हुआ था कि एक फेक न्यूज को ही उन्होंने वेरीफाई करके और बाद में उसको कहा था कि ये फैक्ट ये है, एंड विच द फैक्ट इटसेल्फ वाज नॉट करेक्ट। तो अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मैं हमेशा ये कहूंगा सिंपल वे तो यही है कि आप उसको 2 या 3 ऑथेंटिक सोर्स से आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको मोर और लेस आइडिया लग जाएगा कि ये स्टोरी गलत है, जैसे होता है ना। तो ट्राई टू गो टू द ओरिजिनल सोर्स, वो चाहे और ओरिजिनल वेबसाइट्स पे जाइए। आदित्य जी, अभी अपन बात कर रहे थे ये सेशन शुरू होने के पहले कि सीजेआई का जो स्टेटमेंट था कॉकरोच वाला, हाँ हाँ अब वो मिसकोट हुआ अखबारों में, है ना? हाँ, मतलब उनका हाँ कहने जी। का मतलब दूसरा था और असर उसका कितना हो गया कि पूरा आंदोलन खड़ा हो गया। एक्चुअली उसमें सर वो ना एक बॉर्डर लाइन केस है, एक्चुअली मैं हाँ उसको हाँ कहूंगा कि ये थोड़ा बॉर्डर लाइन केस था, जहां पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, हाँ मतलब हाँ, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि कई बार एक हम वो आपने भी पढ़ाया होगा, हम पढ़ाते हैं नैरेटिव सेट करना न्यूज का ना। बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है कि वो बात कही होती है उसी तरह से, और उस बात के बहुत मतलब मैं अगर यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं उस बारे के बोलने की इंटेंशन मेरी कुछ और है, लेकिन मेरे वर्ड्स ऐसे हैं कि आप शायद उनको इंटरप्रेट किसी और तरह से करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है वो वाला जो कॉन्टेक्स्ट था उसमें ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली मिस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन वो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा सेलेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में आके वो आया है, और लोगों ने जैसा होता है कि, और उसमें क्या होता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसी जुड़ती गई कि उन्होंने उसके बाद किसी और कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत हाँ, बार लेकिन उसके लिए भी मना किया, सीजेआई कहता है कोर्ट में उन्होंने, याचिका पेश नहीं हुई। मैं कह रहा हूं उसके लिए भी मना किया, लेकिन
हम एक जर्नलिज्म में एक चीज करते हैं मेरे ख्याल से, जब हम न्यूज रूम में होते हैं, हम कई बार ये अंदाजा लगाने के लिए कोशिश करते हैं कि जो हम ये हेडलाइन दे रहे हैं, कहीं कोई ऑडियंस जो बेचारा कम नॉलेज का है या कोई जिसके बारे में पूरा कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं, कहीं वो इसको मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लेगा। तो हम कोशिश करते हैं वो हेडलाइन ऐसी दें कि जो कॉमन आदमी भी है, जो बहुत वेल नहीं है, वो उस चीज को मिस इंटरप्रेट ना करे। तो हालांकि मैं उनको डायरेक्ट कुछ वो तो नहीं, बट नॉर्मली जो लोग थोड़ी ऐसी पोजीशंस पे होते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा डबली कॉशियस रहना चाहिए कुछ बोलने से पहले, कि मेरी बात को इस कॉन्टेक्स्ट में कोई और अलग तरह से तो नहीं ले लेगा, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो ज्यादा जरूरी है सर। और इसमें भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। कल मैं भाषा, एक बड़े अखबार के ऐप पे पढ़ रहा था, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, शायद जोधपुर की खबर थी, सुबह चाय पीते हुए बच्चों को टॉफियां बांटी। अब मैं सोचने लगा, चाय मुख्यमंत्री पी रहे थे या बच्चे पी रहे थे, किनको टॉफियां बांटी, कब बांटी? समझ में आया ना? मुख्यमंत्री ने चाय पीते हुए बच्चों को टॉफियां बांटी, तो चाय कौन पी रहा था ये नहीं पता। वॉइस मॉड्यूलेशन और पंक्चुएशन मार्क्स का सर इसमें वो तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, इंदिरा जी की जो आपने बात की, 84 की घटना है, सुबह 9:10 पे जी उनकी हत्या हुई थी। और हाँ, हम ऑफिशियल असेंबली में थे सर, स्कूल असेंबली में थे उस टाइम ना जब ये हुआ। ऑफिशियली जो डिस्क्लोज हुई थी खबर, वो शाम की 6 बजे हुई थी। हाँ, लेकिन सर मीडिया को काफी जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, हाँ, उनको एक्चुअली इस चीज का पता चल चुका था। वो तो इट वाज एडिशन जस्ट, आ गए थे क्वेश्चन मार्क करके, अखबारों ने हाँ एडिशन निकाल दिए। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने हाँ कंफर्म नहीं किया, राजीव जी ने शपथ नहीं ली, तब तक हाँ उसको बिल्कुल, उन्होंने, बीबीसी ने कह ही दिया था बहुत जल्दी कि वो नहीं बची नहीं है। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है, शायद एक अखबार में कार्टून था कि राजीव गांधी खबर को कंफर्म करने के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट पर बीबीसी को ट्यून कर रहे हैं। उनकी हाँ मां हाँ जीवित है मुझे नहीं, वो याद, कंफर्म करने के लिए। लेकिन चूंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुए पीएम का, और राजीव जी ने, क्योंकि पीएम का पद खाली कैसे रहेगा, आज तो मेरे ख्याल सब कुछ क्लियर है, कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता किसी चीज को। तब आप देखिए। हाँ नहीं हालांकि, हाँ, हाँ आज नहीं वो, फिर अगेन वो टॉपिक डेविएट हो जाएगा। कोशिशें होती हैं सर रोकने की, और लेकिन ये है कि क्योंकि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मीडिया भी हैं, तो बस वो ऐ- ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल रोक सको। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी वजह से ये प्रोपोगेंडा और जिस मिस इंटरप्रेशन और नरेटिव सेट करने की जो फॉर्म्स हैं, हाँ हाँ, वो ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं, ताकि इंफॉर्मेशन चली तो जाए लेकिन नरेटिव उनके ढंग से जाए। बिल्कुल। जी, चलिए सौरभ जी, कुछ आप भी अपने हेलो अनुभव। सौरभ। नमस्ते सर। हेलो सौरभ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया टॉपिक है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड ट्रस्ट। और आज के टाइम में ये तीन चीजें हैं जो जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में बहुत जिसका हम कह सकते हैं कि बहुत बेस है ये। तो टेक्नोलॉजी और एआई के मामले में तो ये है कि जैसे आदित्य सर ने तो कहा कि वो क्या कहते हैं, टाइपराइटर भी होता था। हम गौरव सर से सुना करते थे इंडियन एक्सप्रेस ऑफिस में टाइपराइटर रखा रहता था, कैसे कैसे। तो हम तो उस वक्त तो हम जर्नलिज्म में नहीं आए थे, लेकिन फैक्स मशीन तक तो हमारे टाइम में था कि फैक्स मशीन से प्रेस नोट आते थे। लेकिन अब वो जब फैक्स मशीन रिप्लेस हुई, ईमेल का सिस्टम आने लगा, तो तब भी कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता है, रिटर्न में चाहिए, ईमेल तो कोई हैक कर लेगा, ये सब चीजें, ये सिस्टम देर तक नहीं चलेगा। लेकिन वो सिस्टम चला। तो एआई आ चुका है, जर्नलिज्म में अपना स्थान ले चुका है, ये सच सबको मानना पड़ेगा। अब एआई के साथ हमको कैसे जीना है, कैसे निभाना है, इसका हमको देखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी तो आ गई है हमारे पास, एआई, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आदित्य सर से भी एक बार धर्मशाला में भी कुछ दिन पहले बात हो रही थी कि मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ, और वो किताब का टॉपिक ऐसा है जो मैं बहुत नया नया उससे जुड़ा हूँ, टिबेटन बुद्धिज्म, इनका स्ट्रगल, ये सब से। तो उसमें जब मुझे कोई कंफ्यूजन होता है, तो या तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, या मुझे बहुत सारे स्कॉलर से बात करनी पड़ेगी। इतना साधन संसाधन नहीं होने का की वजह से काम रुक जाएगा। तो एआई एक ऐसा माध्यम मेरे पास है कि मैं उस पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि यार आई एम स्टक हियर, इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, कौन कौन स्कॉलर्स हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि जो टिबेटन स्कॉलर्स हैं वो कौन है, कहाँ है, किसी यूनिवर्सिटी में है, कहीं क्या है। तो वो एक लिस्ट दे देता है कि अगर आप इस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो सो एंड सो एंड सो ये लोग हैं, इनका ये काम है, इनका ये ईमेल आईडी है। तो उन्होंने मेरा काम, कई महीने का काम, वो एक दिन में एआई कर रहा है। उसके बाद में उनसे मिलता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ और उसको काम करता हूँ। तो यहाँ तक तो एआई ठीक है।
अब बात यह है कि जैसे जर्नलिज्म की पत्रकारिता की बात है, मुझे अभी पता है, हम जैसे सर ने कहा कि अखबार करके पढ़ के पता लग जाता है कि ये खबर कैसे लिखी गई है। तो पहले क्या होता था, कॉपी होती थी कहीं से, लिफ्टिंग कहते हैं कि भी वहां से उसने खबर की पैडिंग लिफ्ट कर दी, तो जो सीनियर होते थे वो पता लगा लेता था कि अच्छा ये लैंग्वेज तो इसकी है नहीं, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया की लैंग्वेज है या ये हिंदू की लैंग्वेज है। कई बार हमने देखा है जब लिफ्टिंग होती थी, हमारे कलीग इधर उधर भेजते थे तो उसमें मिस्टर लगा रहता था, तो हमें पता था कि या पीटीआई है या यूएनआई है या हिंदू है। बाकी लोग तो ये सब स्टाइल शीट फॉलो नहीं करते हैं। तो अब ये चीजें हो गई हैं, और सर ने जैसा कहा कि अब अपॉलॉजी और गलत छपना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अ, वीरभद्र सिंह का केस चल रहा था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, ये टैक्सेस वगैरह को लेके, वो चीफ मिनिस्टर थे और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में छुट्टियां चल रही थी। तो एक जस्टिस थे वहां, वो आनंद शर्मा के बड़े करीब माने जाते थे, तो उनके पास जैसे रोटेशन में केस आया तो उन्होंने रूलिंग ये दी, सब कुछ करेगा इस केस में, लेकिन इस केस की जो फाइंडिंग है, जो इस केस का जो मजमून जो है, उसको ना पब्लिक करेगा ना उस पर कोई क्या कहते हैं, कोई फैसला लेगा, मिल जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने एक फैसला दे दिया। अब शाम का वक्त था, कोर्ट से आया और वीरभद्र सिंह का केस था, और आई थिंक अगले दिन कुछ छुट्टी थी, उस दिन खबरें भी कम थी, तो हमारे अखबार में, जिस संस्थान में मैं था, बहुत बड़ी 3 कॉलम की एक बड़ी खबर छपी कि हाई कोर्ट से वीरभद्र सिंह को रिलीफ मिला। तो रिलीफ मिल गया कि भाई इनकम टैक्स सब कुछ करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा। तो नेक्स्ट डे जो रजिस्ट्रार जनरल जो रहते हैं हाई कोर्ट के, अब तो शायद वो जज हो गए होंगे, उनका हमको फोन आया, पहले गौरव सर को फोन आया, हमको फोन आया कि आपको जज साहब ने याद किया है। तो मुझे समझ नहीं आया याद किया है, मैंने कहा पता नहीं क्यों याद किया, क्या हो गया, या आपने गलत खबर छाप दी है। तो हाईकोर्ट की खबर गलत छपना, तो सरकार और नेता को तो आप मना लेंगे, लेकिन जज साहब ने कुछ कहा और गलत छप गया, मैं घबरा गया, और जो और लोग हैं तो उनको भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो मैंने वो जो कोर्ट का जो रिपोर्ट वो था, ऑर्डर था, वो 3-4 बार पढ़ा। अरे मैंने कहा ये रिलीफ ही लग रहा है मुझे तो इसमें है। तो जज साहब का कंसर्न बाद में मीटिंग में ये था, मैं बड़ा घबराया हुआ था, मैंने कहा पता नहीं योर ऑनर क्या कह देंगे। तो उन्होंने बड़े सौम्यता से ये कहा कि बाकी तो कुछ नहीं है, ये जो रिलीफ शब्द है ना, तो आपको पता है मुझे कहाँ किससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो रिलीफ शब्द से मेरी पोजीशन खराब हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप वीरभद्र सिंह को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं, आप पाला बदल रहे हैं। तो उनके कोई सीनियर जज होंगे, उन्होंने सुबह सुबह फोन करके उनको खूब सारा छेड़ दिया होगा कि अरे वीरभद्र सिंह को बड़ा रिलीफ दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जितने साइज का ये 3 कॉलम का है, इतने साइज का इसका कॉरिजेंडम छापो। तो हमने कहा कि सर हमें भी लग गया कि चलो गलत तो हमने नहीं छापा, इनको रिलीफ शब्द से प्रॉब्लम है। हमने कहा कि सर आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, हम उसको छाप देंगे। अब रिलीफ, उसको एक खबर में आप रिलीफ को हटा के क्या कॉरिजेंडम देंगे। फिर भी हमने थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के दूसरे पन्ने पे नीचे एक छोटे से कॉलम में कि भाई उसमें ये था वो था करके उनको सेटिस्फाई करा दिया, जैसे जो भी था। लेकिन उस छोटे से कॉरिजेंडम के ऊपर दिल्ली से लेके शिमला तक चर्चा हुई थी। जो लीगल डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो सब उनके पास वो ऑर्डर गया, उन्होंने देखा कि अच्छा हाँ हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई। अब आज की डेट में ये है कि ये जो ट्रेडिशनल मीडिया है, या जिसे कहें हम कि जो प्रॉपर जो जर्नलिस्टिक वे फॉलो करता है, उससे ज्यादा विश्वास, जैसा कि सर ने भी अभी कहा, कि जो ये न्यू मीडिया है, फेसबुक चैनल, इंस्टा और ये ब्लॉगर्स हैं, ये इनको लोग मान चुके हैं कि ये है पत्रकार। क्योंकि ये बेरोक टोक किसी को भी गाली भी दे देते हैं, किसी को भी चौराहे पे बेइज्जत भी कर देते हैं कि हाँ इस बंदे में दम है, इसने उस मंत्री से ऐसा सवाल पूछा था। अब वो खुद ही पत्रकार है, खुद ही सब एडिटर है, खुद ही एडिटर है, खुद ही मालिक है। वो कहते हैं ना कि भाई मैं जो खबर लिख रहा हूँ वो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, मेरे द्वारा ही एडिट की गई है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो वहां गलतियों के चांस भी ज्यादा है। फिर दूसरा चक्कर हो गया व्यूज का। हमने एक रिपोर्टर को यहाँ कहा कि अरे तुम अभी नए हो, थोड़ा इस पे फोकस करो, थोड़ा इस पे लैंग्वेज पे फोकस करो। वही कि मुख्यमंत्री चाय पीते हुए बच्चों को टॉफी बांट रहे हैं, तो भाषा वो कई बार, तो वो कहते हैं कि सर वो छोड़ो, ये देखो 1.5 लाख लोगों ने ये खबर देख ली है, आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक अखबार का एग्जाम्पल दिया कि वो ऐसा हुआ करता था, हम उसको पढ़ा करते थे, अंग्रेजी सीखा करते थे। तो उसने मुझे कहा कि उस अखबार की तो 50 कॉपी आती है सर, मेरी खबर को 1.5 लाख लोगों ने देखा है। तो अब ये पैमाना हो गया है व्यूज।
तो ये सब चीजें हैं। बाकी जहां तक टैलेंट की बात है और ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट तो आधार है जर्नलिज्म का। उस वो सबसे वैल्यूएबल और ऐसा एसेट है जो इरोड नहीं होना चाहिए। और टैलेंट का ये है कि आप एआई भी ले आएंगे, सब सारा काम उससे कर सकते हैं, बजट के पॉइंटर्स भी आप उससे ले सकते हैं, बहुत आसान काम है। इन्फोग्राफिक्स का डाटा भी उससे आप ले सकते हैं। लेकिन जब तक पत्रकार में क्यूरोसिटी नहीं होगी, करेज नहीं होगा, और वो स्केप्टिसिज्म नहीं होगा, शक करने की जो उस पे वो जो इंटेंसिटी होती है पत्रकार की, कि किसी चीज पे शक करना कि ये गलत तो नहीं है, तो वो एआई में नहीं है। और एआई क्या करेगा? एआई तो सिर्फ जो इंटरनेट पे जानकारी मौजूद है उसमें से हमको करके देगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स में, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक खबर छपी थी कि वो कोई यूएस का एक वीडियो था कि ट्रंप ने कोई वीडियो शेयर किया है कि उसमें ओबामा अरेस्ट हो रहे, कुछ इस तरह का कोई वीडियो था। तो उसको लेके खबर छप गई। तो आई थिंक वो रिपोर्टर ने कुछ प्रॉम्प्ट ऐसा डाला होगा कि डिसइंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो यूएस की एक बहुत बड़ी डिसइंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट है, वो उनका नाम है निना जेंकोविच आई थिंक। तो उनका एक एआई ने कोट मैन्युफैक्चर कर दिया उस स्टोरी के लिए, और वो स्टोरी छपी, ट्रंप से रिलेटेड स्टोरी थी, उसमें वो निना का जो है वो कोट उसमें छपा था। उसने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही किसी रिपोर्टर से नहीं है। अब क्योंकि वो डिसइंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट थी और प्रॉम्प्ट में इस तरह के शब्द यूज हुए होंगे, ओबामा हुआ होगा, ट्रंप हुआ होगा, तो उसने अमेरिका के डिसइंफॉर्मेशन की खबर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एआई ने अपना दिमाग लगाते हुए वो उसका कोट बना दिया, वहां पर मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अब ये तो छपने के बाद ही पता चलेगा कि जब वो कहेगा कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं है ऐसा। तो बात ये है कि रिपोर्टर के अंदर ये जो 3-4 चीजें हैं, ये तो रिपोर्ट आदमी का, जिसको कहते हैं ना ह्यूमन इंटरवेंशन होना, उसमें एआई में जरूरी है। एआई एक साधन हो जाएगा, जैसे एक वक्त पे टेलीविजन हो गए थे। शिमला में एक रिपोर्टर थे, 2014 में प्रधानमंत्री जी का दौरा था। उस टाइम तो ये चुनाव लड़ रहे थे सुजानपुर में। तो शिमला में बर्फ गिर गई तो कुछ लोग जो पहले चले गए वो जा सके, जो नहीं गए वो वहीं रहे। तो हुआ ये कि हमने ऑफिस में बैठ के, हमारे रिपोर्टर तो वहां धर्मशाला थे, लेकिन एक अखबार के रिपोर्टर हमारे ऑफिस में आके टीवी में बैठ के उन्होंने पूरी खबर फाइल की, और वो खबर छप गई, ऑनलाइन पे छप गई। और जो वहां फिजिकली वहां रिपोर्टर गए थे, वो कहीं लाइट नहीं थी, कहीं इंटरनेट नहीं था, वो काम नहीं कर सके। तो टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करते हुए टीवी से भी वो लाभ हो रहा था। लेकिन बात, जैसे भी मैडम ने कहा कि कैसे पता चलेगा फैक्ट क्या है, उसके लिए तो रिपोर्टर को जमीन पे उतरना पड़ेगा, अपने सोर्सेज कल्टीवेट करने पड़ेंगे। एआई आपके सोर्सेज को रिप्लेस नहीं कर सकता है, और एआई आपकी जो जमीनी मेहनत है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। आदित्य सर जानते हैं, एक एक स्टोरी के लिए रिपोर्टर कहाँ कहाँ पैदल जाता था, कितने कितने दिन तक वो स्टोरी होल्ड रहती थी कि फलाना आदमी का कोट नहीं मिल रहा है, फलाना इंफॉर्मेशन का वो प्रूफ नहीं मिल रहा है। तो आज ये जो जल्दी के चक्कर में है कि भाई अभी कुछ सुना और वो फेसबुक पे उसमें डाल दिया कि हिमाचल में होगा ऐसा, और वो चल पड़ा बहुत जोर से, उसको 50, 100, 1000 लोगों ने देख लिया, तो पैमाना हो गया कि खबर चल पड़ी है, वायरल हो गई है खबर। लेकिन वो कैसा होगा वो उस पूरी खबर में कहीं नहीं है। तो सौरभ बस जी, ये सब। एक सबमिशन मेरा इसमें ये था, आपने बहुत सारे उदाहरण देकर के बात की, लेकिन चूंकि आप दोनों ही मीडिया में हैं और एआई का उपयोग कर रहे हैं, इसमें एक तो मुझे लगता है कि जब आप अखबार में ये छाप रहे हैं तो कॉपीराइट की क्या प्रॉब्लम, कभी आपने इस बारे में सोचा है? नहीं सोचा कॉपीराइट का क्या होगा? अब ये खबर पढ़ी हो आपने कुछ दिन पहले, वो बड़ा एक मुझे लगता है कि आई ओपनिंग खबर है। ये जो एआई कंपनीज हैं, ये किताबों के किताब में सारे एडिशन खरीद रहे हैं, इधर ही है बिल्कुल। और सारे एडिशन खरीद के ये एआई को उस पर ट्रेंड कर रहे हैं, और उस किताब का कोई मतलब, आप बताइए किताब या पन्ना जो है हमारे यहाँ गिरता है तो हम उसके सिर पे लगाते माथे में हैं, लगाते हैं। है ना? इतनी मतलब जिसकी हमारे यहाँ कीमत है, और वो उस किताब को स्कैन करके, बड़े अच्छे स्कैनर इन कंपनीज के पास हैं, पूरी किताब सेकंड्स में स्कैन करके वो सारे के सारे एडिशन नष्ट कर रहे हैं। पब्लिशर चक्कर खा रहे हैं कि हमारी किताब अचानक कहाँ से बिकने लग गई है। तो ये जो संकट नया आ रहा है, इसको मतलब इस बारे में कहीं कोई चर्चा हो रही है, कहीं चिंता है कि नहीं है? और देखिए सर, क्योंकि जो कॉपीराइट ये की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। किताबों का विषय आपने उठाया, बहुत ही पर्टिनेंट इशू है। इसका इसका दर्द तो अभी उन्हीं लोगों को है जो अखबार में है, किताबों में है, अखबार देख रहे हैं। सरकार वालों को अभी इस पे कोई इतना उनका ध्यान इस पर नहीं गया है। और ये मतलब ये सच है, क्योंकि ये हमारी चिंता हो सकती है, क्योंकि हम किताबों से जुड़े हैं और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या चीज है ये हम समझ रहे हैं।
और अगर ये मेरे सामने कुछ किताबें पड़ी है, इसका वो स्कैन करके वो ले लेंगे। अगर इसमें कोई उसका कोई नैरेटिव सेट करने वाला कोई पैरा उसमें चेंज कर दिया, अब हमें क्या पता क्या छपा था, कहाँ क्या हुआ था इतनी मोटी किताब में, तो वो बिकने लग जाएगा, चलने लग जाएगी चीज। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाली बात है कि स्टेटमेंट वो कही हो ना कही हो, आज की डेट में आप टाइप करोगे तो सबसे पहले तो वही आएगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा देखी गई है। तो वो इस बारे में तो मुझे लगता है कि जितने भी हम स्टेक होल्डर्स हैं, एक इस तरह का कोई एक चिंतन होना चाहिए इस बारे में। और सरकार से भी अर्ज होना चाहिए कि भाई एआई तो आ गया है, इसको इसको आप हटा नहीं सकते हैं आप किसी भी चीज से। सरकारी दफ्तरों की सारी चिट्ठियां एआई में लिख रहे हैं। हम जानते हैं कुछ लोगों को जो हिंदी लिखने में स्ट्रगल करते थे, आजकल उनकी सरकारी दफ्तर में इंग्लिश में बहुत बढ़िया चिट्ठी वो लिख के फटाफट अपने बॉस के आगे कर देते हैं। तो लेकिन इसका जो आपने कहा कॉपीराइट का इशू है, ये सब चीजें हैं, इसको लेके तो एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कानून सख्त बनना चाहिए। सख्ती तो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं, कानून बन गया तो फिर आप यूज कैसे करोगे? जैसा आदित्य जी ने कहा कि डॉन ने जो इसमें आप सर संपादकीय लिखा, अब संपादकीय एआई से लिखा गया है तो मशीन पे तो कॉपीराइट है नहीं, कॉपीराइट तो इंसान को ही मिलेगा। तो अब डॉन का जो संपादक है वो कैसे उसको अपना बता सकता है जब लिखाया उसने एआई से है? वो तो अब ये तो सर इसमें ये हो एक सर हाँ सर प्लीज। नहीं, मैं इसमें एक चीज वो कह रहा था कि सर इसको लेके ना एक जो सजेशन भी आ रही है, और मेरे ख्याल से ये जल्दी इम्प्लीमेंट होने की बात है, जो हम करते भी हैं, कि जो भी लोग एआई का यूज कर रहे हैं, मैं तो इनफैक्ट मैंने बहुत दिनों के बाद कल एक न्यूज चैनल में देख रहा था, तो जहां जहां एआई का यूज किया जा रहा है, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी ये चीज चल रही है कि उसको ट्रांसपेरेंटली मेंशन किया जाए कि दिस इंफॉर्मेशन एज इंफॉर्मेशन तो नहीं, जैसे ये ग्राफिक है, दिस हैज बीन एआई जनरेटेड। एक टाइम में ये चीजें नहीं हुआ करती थी। और जैसे आपने अपने शुरू में भी बात की कि वाटर मार्क्स की बात आनी शुरू हो गई है, कि जहां पे एआई यूज होगी वाटर मार्क यूज किया जाएगा। तो आई थिंक, और इसमें एक चीज मैं और ऐड करूं कि बहुत सारी जो पब्लिशर्स की एसोसिएशंस हैं सर, वो ना इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना उन्होंने शुरू कर दिया है कि हम इस चीज को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाएं, कि जहां पे एआई यूज हो रही है तो पहले ही वो जैसे एक डिक्लेरेशन होती है, वो उसमें डिक्लेरेशन दे कि ये पोर्शंस में हमने एआई यूज की है। और अगर वो नहीं होता है तो उसको या तो रिजेक्ट कर दें, या फिर कोई ऐसा प्रोविजन बनाए जहां पे ये कहें कि ये डिक्लेयर नहीं किया। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मेरा इनिशियल स्टेज पे अनुभव कर तो रहे ये हैं। है कि अब से कुछ समय पहले तक अखबार लिखते थे फोटोग्राफ के नीचे एआई जनरेटेड, अब उन्होंने बंद कर दिया है। आप देख के अंदाज लगा हाँ, लेंगे कि एआई से जनरेटेड है, लेकिन वो क्रेडिट नहीं देते हैं, तो हम्म, कॉमन मैन के लिए कंफ्यूजन इसमें शायद तो हो सर सकता है। क्योंकि ये मानने में तो कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि उसमें हमने एआई का यूज किया है, हाँ, क्योंकि हम्म, लिखने के लिए हम मोबाइल का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए फोन करके किसी को करते हैं, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ रही है ना। तो एआई से, क्योंकि अभी सर जो मैंने आपको किताब का वो भेजा था, तो उसमें जब आप किंडल पे पब्लिश करते हैं तो उसमें वो आपसे पूछता है कि इसमें आपने एआई का यूज किया है, कितना किया है, किस में किया है। तो मैंने उसमें लिखा कि भाई इसमें जो ये कवर बनाया है ये मैंने एआई से बनाया है, इसमें कुछ पैरास थे उसमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत थी वो मैंने एआई से की है। तो उसमें मुझे लिखने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि जैसे कोई नहीं, बड़ा लेकिन मैं संपादक। आपकी बात को टोकूंगा। जैसा आपने कहा कि एआई से आपने रिस्ट्रक्चरिंग की है, अब मैं एक मैगजीन का जर्नल का एडिटर हूँ, वो आर्टिकल मेरे पास आता है और जब मैं उसको वो करता हूँ, उसका फैक्ट चेक वो करता हूँ, चेक प्लेगरिज्म टेस्ट, उसमें एआई से वो मुझे 70-80% दिखा देता है वो कि ये एआई से लिखा गया है। अभी मैंने 6-7 आर्टिकल वापस लौटा दिए। अब वो 2-3 के फोन आए मेरे पास, वो सामने तो एक लाइन भी नहीं ली उसमें से। अब मैंने कहा लाइन नहीं ली तो ये मशीन तो कह रही है कि आपने चेक किया है। तो जब आप रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया आपने, तो क्या ये जब हम टेस्ट करेंगे उसका, तो क्या वो पूरा एआई जनरेटेड बता देगा? वो उसका वो उसको बता वो देगा, वो उसको डिपेंड बताएगा। करता है कि आपने सर कौन वो यूज कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कैसे, कई बार जैसे आप रन थ्रू करने के लिए भी, जैसे सौरभ कह रहे हैं ना, रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी अगर आप कई बार डालते हैं, हाँ, तो वो फॉल्सली प्लेजरिज्म दिखाना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है एक्चुअली। इसीलिए कई बार भी बोला जाता है कि जैसे वो बच्चे हमारे रिसर्च करके लाते हैं कई बार, कि उस पे एटलीस्ट एक बार प्लेजरिज्म चेक जब आप चला रहे हैं एक बार, कई बार उसको दोबारा से करो तब भी वो फॉल्सली दिखाना शुरू कर देता है कि नहीं एआई दोबारा तो क्या है, जनरेटेड वो आपने कंटेंट है। हटाया नहीं वहां से, इसलिए दोबारा आएगा वो। आप जब फर्स्ट टाइम हाँ, चेक करोगे तो वहां से आपको उस रिकॉर्ड से हटाना पड़ेगा उसको। अच्छा, प्लेगरिज्म अलग है और एआई सिमिलरिटी अलग है। हाँ, प्लेगरिज्म तो हाँ, उस आर्टिकल में आ रहा है 2%, 3%, लेकिन एआई जनरेटेड बता रहा है वो 80%, 90%। अच्छा,
और ये वो तो बड़े बड़े करता है नामधारी सर। लेखकों की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, उनके साथ ये हो रहा है। तो या तो अब सब कुछ, अच्छा अब यूट्यूब देखिए आप, मेरे ख्याल 90% थंबनेल जो है AI जनरेटेड है। सारे AI जनरेटेड। बिल्कुल। तो ये कहाँ, अपनी किताबों के कवर पेज जो पहले आर्टिस्ट बनाता था उसमें जो नयापन था, अब वो जो हमारा कंपोजिटर है प्रेस वाला, उसकी तो लिमिटेशन यहाँ है साहब, मेरे पास तो और कुछ है नहीं, यही है, बता दो कौन सा बनाना है। अखबारों में वो पोस्ट होती थी जो कैरिकेचर बनाते थे, उसको कुछ कहते थे, हमारे हिंदुस्तान एक टाइम्स में। एडिटोरियल, पूरे AI जनरेटेड एडिटोरियल भी आए हैं सर, वो डिक्लेयर करके ना। तो इसमें अच्छा तो कहाँ सर ये है डिक्लेयर, कि जैसे किसने जो किस लिख रहे हैं अखबार वो ने किया है, घोषित कहाँ कर दें। कहाँ देखा आपने डिक्लेयर किया है ये? नहीं टेक्स्ट में तो डिक्लेयर मैंने, किया, नहीं, एक टाइम्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसपे मेंशन किया था, बट वो एक्चुअली कुछ चला नहीं ज्यादा, जैसे होता है ना, उस पे उन्होंने कहा था कि AI से जनरेट करके हम ये लिख रहे हैं एडिटोरियल। और ये एक बार हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था टाइम्स में जिसमें शायद उन्होंने बताया। डिनो करके ऐसा कुछ उनका वो था, AI और एक्सपेरिमेंट था। हाँ, और एक इनफैक्ट एक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक स्पोर्ट्स की कोई वेबसाइट थी, मुझे एक साल पहले मैंने उसको चेक किया था, वो एंटायरली AI जनरेटेड स्पोर्ट्स न्यूज उस पे प्रोड्यूस करते हैं, एंड दे मेक ए क्लेम कि हम AI से जनरेट करके ये दे रहे हैं। उसमें उनको कोई वो नहीं है, और इन्फॉर्मेशन तो होती है, जैसे आपने स्कोर देखना है या मैच कहाँ जा रहा है, तो एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेदर रिपोर्ट है, वो आप इजीली जनरेट करके, प्रेडिक्शन है वो बता सकते हैं। तो ऐसा तो कर रहे हैं सर। अच्छा ऐसे भी कोर्ट की बात कर रहे थे, वो CGI ने तो मना कर दिया कि आप ये जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं इसका खबरों में उपयोग नहीं करेंगे, वो सब मिसइंटरप्रिटेशन हो रहा है खबरों का। ये, हाँ, उन्होंने ये कहा है, एक्चुअली उसमें क्या है, कोई सेलेक्टिव क्लिपिंग निकाल के चला रहे हैं सर, वो ये कर हाँ रहे हैं ना। हाँ, बस वो वो गड़बड़ हो रहा लाइव जो टेलीकास्ट होता है उसका जो, है। उसमें से नहीं वो नहीं, उसमें से वो, हाँ, एक वो सेलेक्टिव, उसमें सेलेक्टिव क्लिप आपने निकाल दी और हाँ अपनी तरफ से कुछ कैप्शन में नैरेटिव डाल दिया, तो उसमें फिर ये डाल दिया मिस्टेक कि होता है। CGI ने लगाई फलाना को लताड़, और हाँ वो हाँ, एक वही है। छोटा सा अरे वो मैंने डाल तो आज दिया। देखा वो प्रधानमंत्री को लेके किसी ने कर दिया, बिना टेलीप्रॉम्प्टर वो बीच बीच में हकला रहे हैं, सारा गलत सलत बोल रहे हैं, वो हाँ पता नहीं कहाँ से उसने बना बना करके प्राइम मिनिस्टर को भी आज डैमेज किया है बहुत। एक्चुअली ये हाँ चलिए, मेरे ख्याल खबरें से और हाँ एंटरटेनमेंट मिक्स हो गया है इस चक्कर में हाँ, ना, ये जो भी बड़ा चैलेंज है। ये बड़ा ये मिक्स वो हो गया है। मीडिया चलिए, चर्चा लिटरेसी अपन बहुत तीन में सिमट इम्पोर्टेंट गई, है। हमारी ऑडियंस में से किसी के मन में कोई हाँ सवाल हो तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन इसको वाइंड अप करते हैं। चलिए, मेरे ख्याल कोई सवाल है नहीं अब। प्रियंका जी, आपसे अनुरोध, वोट ऑफ थैंक्स। So I would like to come within vote of thanks. I extend my heartfelt gratitude to our immense speaker, Sri Aditya Kant sir, Professor of Immense Department of Journalism and Mass Communication. The way sir has given his valuable inputs, insight, and experience really enrich our information and knowledge. The topic has highlighted how technology is transforming newsroom, talent is driving innovation, and trust remain the foundation of credible journalism. But being talented, being innovative, and having the trust must lead to being authentic. It also leads to being original, because अगर आप टैलेंट की बात कर रहे हो तो टैलेंट कभी वो नहीं हो सकता कि आप किस तरीके से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, राइट? सो टैलेंट इज ऑलवेज अबाउट बीइंग ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी। सो इन कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब ट्रस्ट की बात करते हैं तो अगर आप किसी को भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और लोगों का ट्रस्ट जीत रहे हो तो ये कभी सही नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान देना है एज अ मीडिया पर्सन और एज अ मीडिया प्रोफेशनल और एज अ मीडिया टीचर, कि अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो तो आप एक छोटी ही सही, इनकम्प्लीट ही सही, लेकिन सही इंफॉर्मेशन दो। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, उतनी ही है, तो डिलीवर इट, बट डोंट गिव रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। सो this always be a responsibility of a journalist or a media person to deliver a right information. I sincere thanks to all the faculty members, media professional, and all the students who have been gathered with us. Thank you so much. Special thanks to Banawat sir and Professor Aman Huda sir, because मैं हमेशा कोट करती हूँ कि they are the strongest pillar. जिस तरीके से मीडिया फोर्थ पिलर है, वैसे ही ये जर्नलिज्म के दो पिलर्स हैं जिनके वजह से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। So thank you everyone who have been gathered with us, and stay connected for next webinars. Thank you. चलिए, हमारी थैंक यू ओर से सो भी मच। धन्यवाद, प्रियंका जी का धन्यवाद। वो विद्युत सप्लाई ठप होने के बावजूद उन्होंने इस सत्र को संचालित करवा दिया। और हमारी अगली वेबिनार जो है वो 19 अगस्त, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे,
और इसको एड्रेस करेंगे, मेरे ख्याल आदित्य जी और सौरभ जी जानते होंगे, हिमांशु व्यास, हिंदुस्तान हाँ हाँ टाइम्स में लंबे समय तक रहे वो, डेफिनेटली और मेरे तो बहुत ही मतलब विभाग के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा उनका, तो वो एड्रेस करेंगे। और उसका विषय है बियॉन्ड द लेंस, फोटोग्राफी एज पावरफुल कम्युनिकेशन टूल। तो हिमांशु जी को सुनने के लिए और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को सेलिब्रेट करने के लिए 19 तारीख बुधवार शाम 5:30 बजे अपन फिर मिलेंगे। और मेरी ओर से भी धन्यवाद आदित्य जी को, उन्होंने समय निकाला, अपने अनुभव थैंक शेयर यू किए, सर। और इसी बहाने बहुत सारे पक्षों पे चर्चा हुई, और सौरभ जी ने भी अपना अनुभव शेयर किए। सौरभ जी से मैं कह रहा था कि आपका ड्यू है लेक्चर, अभी बनारस में हमारी मुलाकात होगी, तो कोई डेट और विषय जो है तय करके, और जिन मित्रों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो हमारी छोटी सी यात्रा है, ये ज्ञान यात्रा है, विचार यात्रा कहते हैं हम, इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती रहे। YouTube कमेंट बॉक्स, उसमें आप टिप्पणियां कीजिए, हमारी चर्चा कैसी लगी, कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।